Goashi Maraba, a very warm welcome to the Daily Prelude Show. And joining me today is Sheikh Wajid. Gorshai Maraba. Thank you, Brother Reverend Steve. Welcome to all the ALRA TV viewers. Looking forward to tonight's broadcast. Thank you. And I'd like to say Shinlin Kuailo to all our Chinese viewers, because it's Chinese New Year today, the year of the rat. And to go alongside that, the video is being released now in Mandarin by Sheikh Shakil. And we really want to get these figures up. There's only had 650 views at the moment. And we really want to bump those views up, because looking through, there's lots of interest in China. Obviously, there's some huge Muslim communities in China. And it seems they're very interested in Sufism. And now if you just search on YouTube for Chinese Sufi, and then our video comes up. Then Sheikh Shakil's there explaining the Universal Sufi Order in Mandarin, which is going to be really wonderful for us. So congratulations to Sheikh Shakil for that wonderful video. He really looks the part, and it's brilliant. So we're getting there. We've got the Bangla one out 2 days ago. So if you haven't watched that yet and liked it, look for the Bangla Universal Sufi Order introduction. And now, of course, we've got the Mandarin and the Man on the Moon documentary. That's still there. Don't forget about that. Let's share as well the Man on the Moon documentary. That's an awesome piece of work. Really, really good. And we need to get that out there and share it because this is going to be our tagline for this year is 2020 mission. And we want to share everything, get everything with high viewership, high likes, and get it out there. So when people start searching for things, they start going for hashtags and what's trending, then our material comes up, and they'll think, wow, this is something new, something different, and they will most certainly watch it. And we have, our thoughts and prayers are very much today, changing the subject, in Turkey. There was the absolutely devastating earthquake that took place in Turkey, more or less sort of central in the country, and lots of deaths, raising all the time, 20 to 30 dead, and up to 1,500 people missing. And when you say missing, that obviously means they are buried deep under these buildings, buried alive under buildings. So it's not looking good at all. Very grim over there in Turkey. It was 6.8. I mean, that's more or less 7, which is what they had in Mexico when thousands died in that Mexico City not so long ago. So this is actually nearly 7 on magnitude, and they felt it in neighboring Lebanon. They felt it in Syria. They even felt it in Iran. They felt the tremors. So the thoughts and prayers from Universal Sufi Order, ALRA TV, are very much with the people in Turkey and the rescue services. And let's hope all the neighboring countries can get together and be as much assistance as they can to those people in Turkey. It's terrible news. So we're hoping for some good news there, and people to get out safe and sound. And another amazing program in Nepal, Sufi Master Younus AlGohar delivered another wonderful program, and it was as much a universal Sufi gathering as you could imagine. Swamiji invited lots of different people, and lots of different people spoke at the event. This is a little taster. We're going to be showing the whole program after the prelude show.
And we also had Young Chai from South Korea. She was there, just to add to the multiculturalism that's spreading wide now in our order, in our Sufi order. And so we had Young Chai from South Korea, singing "Raise Me Up" by the Good Irish Boys, Westlife. It was really good, nice to hear us sing that beautiful song. So you're going to be watching all that later tonight. And the Sikhs were there, and I think Swamiji's guest was I think these are Swamiji's guests as well. So yeah, absolutely amazing, and you're going to really enjoy that program after the prelude show. And I'm going to talk about a little bit about Sister Tatiana as well, her work. That will be a little bit after the our talk today, which we're going to cover a chapter of the Western Sufi course. Once again, we're looking to share that everywhere. This is a fantastic knowledge, all packed inside this. It's such an easy to follow guide to Sufism, and we can see already now how hungry people are for the knowledge. And I think reading books as well is becoming a little bit old hat as well. People don't seem to go to, libraries are closing. Even Waterstones, when you go there, sometimes it's pretty much empty. It's all very much online, and people will just be able to watch, read this on the phone, look at the text, watch the videos. Fantastic. So we covered the secured heart a couple of days ago when Sheikh Naveed was here. And this is on the functions of the heart family chapter. So today we're going to discuss, how does God find you? And this is lesson 2 on that chapter of the heart family. And of course we hear that, expression many times, don't we? I'm going to find God, looking for God, the search for God, as if it's a set of car keys or something, I mean, God is in his own domain, in his own spiritual realms. And we need to find the location. If you need to find anything, you need to find the location, and you need those spiritual powers and spiritual eyesight. Do we have such eyesight and such powers to locate the divine location of God? Unfortunately. Unless you know the reality and truth. Yeah. So, as you said, very important chapter, and a lot of key points were highlighted by Sufi master Younus AlGohar. The sitting started, in fact, with a wonderful quote where spiritual master said that somebody asked a mystic saint, his name is Bayezid Bastani, that how did you find God? And his answer was, he said, I never looked for God. Right. God found me. So as you said that a lot of people just start, when you ask about spirituality or you ask them that, okay, what are you looking for? Why did you adopt it for religion? Most of the times the answer you get back is, I'm looking for God. But we are very, very fortunate, of course, that we found Sufi master, and we, through his eminence teachings, we came to know about the truth, that first thing first, that we are living in this world. Yes, we are creation of God, but God is himself, he is in a divine realm, right? Yes. And we are in a realm which is full of negativity, full of uh, dark sides, etc. So unless we raise ourselves to a place which becomes divine, or we become divine, in fact, there won't be any connection that will get established. So it is true for each and everything as well. And there was a beautiful example provided by spiritual master. And master said that, think about if you are in a big car park,
take example of Heathrow Airport. It's a massive car park, right? Or in US somewhere where there's a big massive car park, let's say Disneyland or somewhere, right? So those car parks are massive. Once you have parked your car in the morning after enjoying your day or so, you come back and you are looking around, oh, where is my car? Because the car park is literally full of cars everywhere, in fact. So for that reason, there is something called panic button. Right. So this panic button allows you to find the car, because as soon as you are going to press this panic button, the alarm is going to go off and the car is going to produce the noise, and the indicators and everything is going to just start working, and in order to shout or kind of like, okay, this is where I am type of thing, right? So that feature is available there. Similarly, we do have such capabilities, such feature in ourselves as well, but we need to enable that feature. Not everyone will be by default has this feature enabled unless you follow certain steps, Right. and you reach to a stage where you have that feature, that divine feature which is available and in you. So for that, the process needs to be kick started. So again, here spiritual master gave example of there are so many uh, souls and spirits in our body, and we need to enlighten those souls and spirits in order to become prominent and become identifiable by the God. So there are key points highlighted in this session, which says that first of all, spiritual master himself said, "We are thankful to His Divine Eminence Gohar Shahi, for he revealed upon humanity how to help God find you." And then he said, His Holiness Gohar Shahi said, "You must help God find you." Yes. So it relates to the same thing, that when the mystic saint answered that, okay, God found me. I wasn't the one I tried to find God, right? So exactly the same thing was said by His Eminence Lord Gohar, and His Holiness said that example given by His Eminence was, "You may not necessarily know the names of all the stars that you see in the sky, but you can recognize their presence because they are shiny. And those who are not shining will not come under the radar of your eyes." So beautiful example again, similar to like, okay, car park example. When you look at the sky, there are tons of stars. The only stars which will be catching your eye and will stop your, from looking around, and you will wait for to just see those, are the ones which are shiny. Right. So this is very important point. The only reason why you see, and then His Eminence continues, the only reason why you can see them is because they are shiny. It's all very dark in there. So in order to recognize or spot anything, one has to stand out. So the point here is, how do we stand out? Because God from upper realms, even if He sees down, so many people, Yes. so many people who He has created, who has come to like, okay, picking up based on where they were brought up, which family, which region, adopted some religions, or they are not even in religions. But regardless, whether somebody is following Hinduism or somebody is following Islam, given that he was raised in a Muslim family, or changed or adopted afterwards Christianity or any other religion or so, these things are not going to create any difference, because Yes. when God is going to look from upper realms, He's going to see each and every one exactly the same. He doesn't care about like, okay, this person belongs to this religion or the other religion. What will make us prominent and will make us stand out in front of God's eyes is that we need to
make our hearts shine. And this is the key important thing which His Holiness continued quoting from His Eminence. In a similar way, His Eminence said that in a similar way, His Holiness Goshai said, God looks at His beloved at all times, and those whom He has befriended, those who have become saints of God, God will look at them 360 times a day. But sometimes, once in a blue moon, out of his normal pattern, he wants to see towards common people. And when he wants to see the common people, he doesn't look at your faces. He doesn't look at your actions, deeds, or and different forms of worship. He will look at your heart. So again, the key point to take away out of all this message is like, okay, you need to stand out. And when you how to stand out is because of your heart. Everything else, faces, color, the racial references, religion, faith that we are following is not making any difference. The only thing which is going to create a difference is that our hearts will be looked at. So the ones who are special already got connection established with the God. They are under His constant basically connection, because 360 times a day the God looks at them. But sometimes, or quite often, He looks at common people as well. And out of those common people, the ones who stand out have the shiny heart. It's a wonderful start. So once you've established, and once we realize and really, I mean, you could say that you admit that we can't find God. As a human being, we can't find God. Once that's been admitted, then it comes to the fact a Sufi master, a spiritual master, with the grandeur of his divine eminence, is now offering to humanity, don't try to find God. I will help you to help God find you. And there was another quote, wasn't it, from Prophet Muhammad, that when the Prophet says that everything has a polish, doesn't it? Indeed. Everything can be polished. Everything has its own particular polish for it, as we know with any product. So obviously the heart has a polish for it. And how God will find us is through the polished and shiny heart, which is the remembrance of God. And once the remembrance of God is inside the heart, it polishes the heart, shines the heart. And then it doesn't matter, as Sheikh Wajid said about the stars, we don't know the names of the stars. We don't know if they're planets or they're stars, or maybe they're not even there anymore. Sometimes we're looking at something that's not even there anymore, but we'll just see the shine, the shininess. And exactly the same, God won't see your race, your religion, your sex, nothing. It will just look at the shiny hearts. Indeed, yes. And this is how we can help God to find us. Beautiful, beautiful. Indeed. Yeah, so, and his Sufi master, Younus AlGohar, said that this is a historical statement, because nothing before this was explained that well, right? With a beautiful example that anyone, any common person can understand easily. I mean, all you need to know is what is your priority. If you really want to have your connection established with the God or so, you need to work on something. Because it can work both ways, can't it? It can either be that you would just use it as words and just, yes, I'm finding God, I'm looking for God, I'm up in the mountain looking for God. Or you could say the other way, if somebody said, well, you can't find God, okay, I'll just leave it then. Exactly. So that it can work negatively in either way. Yes. So this is the win-win situation, isn't it? Indeed, yes, yes. So a lot of times what happens is, as you rightly said, that there are people who are like religious clerics or so, in fact, as they don't have this knowledge, they can't offer you anything like this, as like, okay, any explanation of the process, how does this everything starts, and they themselves have no connection established with the God. They have nothing special. What are they going to say or do?
You're gonna simply say that, okay, you can't, it's not possible. Also, we are unfortunately not the, it is basically in the company of prophet, or we are not in the company of any special one, etc. So all we need to do, let's just focus on the teachings, and just focus on the physical aspects, which are like, okay, you need to have a beard, you need to have like, okay, 5 times a day prayer, all those things which are not taking you to the place where, which is, which makes you the prominent one or the special ones, so that you stand out. So nothing is being explained. Everyone is following the same routine. If you are a Muslim, you have a set physical rituals. You just focus on that. Religious cleric are every day just emphasizing on the same thing over and over again. Same goes for like Jews or Christians. The same physical worship, physical practice is explained, emphasized every day. No focus was like, even after doing all of this, what is your ultimate goal? Your goal should be to establish a connection with God. Yes. Have that. That's what makes you supreme and special and creation of God, in fact. So unless you are uh, basically recognize the importance, and you're not focused on that aspect, that okay, what should be the ultimate goal you are striving for, you will be like wasting your time altogether. So as you said that Sufi master Younus AlGohar very rightly, just like okay said, now we have understood that we want to stand out. Okay, in order to stand out, the focus should be on our heart. And we are given this beautiful quote by Prophet Muhammad as well, that you need, everything has a polish, including your heart, to make it shiny. And that polish is remembrance of God. And when the remembrance of God becomes permanent in your heart, it starts generating divine energy. And this divine energy or light is what makes your heart illuminate. Mm. And that's how the God, when he will look around and at common people, he's going to find you, of course. So the most important thing is that okay, you again go back to the point of like, which we have covered in multiple topics throughout this Western Sufi courses. You found your true spiritual mediator, spiritual guide. He is gonna emphasize on you, okay, what are you looking for, or ask you, and you will say that okay, I want to meet God or see God, have my connection established with the God also. The next thing, the true spiritual master or mediator who knows the overall process is gonna say is like, okay, then the same way as His Eminence used to say, whenever a new person used to come in his company or so, he used to ask the same question, why are you here? It's like, oh, I'm looking for God. I want to meet God or have this connection established, etc. Okay, close your eyes. Repeat after me. Allahu, Allahu. So, remembrance of God, initiation of the of the name of the God, in fact, was straight away to the point, bang on. And And it's important that we know that now this has been emphasized more than ever during these courses, that there's two purposes to the enlightenment of the heart, the opening of the heart, not just the remembrance of God, where you would think to yourself that this is just for the afterlife, that my heart's remembering God. So when I die, I'm in front of God. Then my heart has been remembering God. But no, this is benefiting us in this lifetime, yes. because it's the remembrance of God vibrating in the beating system of the heart that's producing the positive energy, the divine energy that's beneficial to us in this lifetime. Exactly. I mean, that's why every time we talk about and focus on this thing, this is applied spirituality. I mean, we are not talking No. about, yeah, you try, you do, you practice, you spend your time, you're not going to experience anything. I mean, in order to make most out of it, it should be practical and applied in both this world and afterwards as well, life afterwards. As you said, once we are on this true path and we have started our journey, of time to time, of course, God is not going to leave us right there. He's gonna bless us, show His blessings to us. In fact, is provided you have you made your heart shiny and you have gone through this process of producing the divine energy, then definitely of God are gonna
bless you in this life, in fact, and your souls, etc., will be able to just start the meditation, transcendental meditation. That whole And process of is course, going to start. that shield against the negative, Exactly. the negative energies. You need divine light, divine energy to fight the negative energies um, in this lifetime. I mean, Indeed, indeed, it's indeed. So I think in the later few more key points were emphasized that okay, now uh, God is being a little more benevolent. yeah, that's what. Yeah. Yeah, I mean that's definitely Yes. worth reading out that whole passage. Those That's passages. incredible, isn't it? Yes. So now God is being little more benevolent upon humanity and has opened the doors of his love, Wow. nearness, and manifestation of all those who want to get it without a precondition of adopting a religion. Yeah, this This is brilliant. I mean, imagine that how lucky, how basically lucky we are in this age. In fact, we are given a very, very straight to the point and shortcut. In fact, you don't need to go look for religions. Yep. First, practice religions, understand religion, and then afterwards you are getting like a 12 years, 14 years, your lower self is cleansed, you're basically getting to a process of becoming a Sufi or saint. That's ages, it used to take ages, etc. But here, before this point was highlighted, Sufi master, spiritual master explained that we need to understand that all of those religions which were sent by God with the holy messengers and holy scriptures, they have lost their value. They have lost their means by which they used to benefit humanity. Yes. Yep. So, unless you understand this point, we have come across so many examples, even recently. I mean, very recent example we have couple of time touched upon this individual who is based in he's in Japan, he's based in Okinawa, and he himself was saying that okay, in the thirst of finding God or having my connection established with God or finding the truth about myself or so, I have jumped from my one faith to another, right? So he was a Buddhist from Yes. by birth in a family, but then he started to learn about Christianity. Then somebody from Christianity told him that okay, once he was not able to find anything, etc., someone else told him, oh, you will find something special in Islam. He converted into Islam. We have so many people like this who are still running around and trying to find the reality in religions or so. But unfortunately, I mean, in this day and age, the special connection with God through religions was through special souls and special ones. And we are not in that age where we have special ones, Right. which are blessed by God in the specific religion, who can have connections and who can enlighten you. And so we need to understand this reality, and that's why it's very important that this particular quote is beautiful, that the precondition to adopt a religion is no more there, it's gone now. And of course, if you take Christianity as well, in the past you would have seen a lot of progress and transformation in the character of the Christians because they had the time then. In those ancient times, they would seclude themselves in a monastery, and of course, you would be fighting the negative energy because you'd be shut yourself off from a lot of negative influences. You wouldn't be. They wouldn't be married. They wouldn't have children, and of course, they would feel more closer to divinity and spirituality. But this isn't the case anymore. We can't do that within a religion. We need the spiritual side of the religion just to Yes, be yeah. easily accessible to us through, if we're blessed enough to find a spiritual master who has that power and authority and that lovingness as well, and wanting to help us and to guide us throughout our lives. I mean, this is just Yes, it's incredible. incredible indeed. Yes, very beautiful. And then
another key point was uh, uh, again reminded that this is a high time now that we should turn towards spirituality. Again, the precondition of like becoming a spiritual person is not a religion to adopt a religion. We need to just focus on that we want to become a spiritual person. We want to adopt spirituality, and only a true spiritual master and spiritual mediator is gonna take you to that path, and he's gonna kickstart the process of by offering you the name of God, and the remembrance of God is gonna make uh, the divine energy or help you to make the divine energy. Yes. And we discussed about like, okay, once the divine energy process starts in your heart, it goes all along with in rest of the souls and in your chest. And in addition, once you are in the company of the spiritual master or so, he offers extra and special which expedite the process or so. So and then we are moving step by step in terms of the states of the heart that we discussed a couple of days back, in terms of first stage Kalbe Salim, and then Kalbe Munib, and Kalbe, all those stages are coming through this whole process. But the main thing or important thing is that why you are doing all of this is because you want to make your heart stand out, Yes. Yes. shiny, produce the divine energy, so that from the upper runs, God can identify you, find you. And this is what basically we are working on, that, okay, we need to help God to find us. So when Sufi Master went on to talk about the two types of people as well, this was an Oh, incredible yes. bit. The ones that practice a religion, Yes. they do practice a religion, but somehow or other they've been infected with the knowledge of hatred, or they've somehow been convinced or been told that sometimes it's just they've come across the wrong type of spirituality, but they just don't feel the spirituality is part of their religion. They think everything is contained within the books. They think that the spiritual side should be left to God. We're not shouldn't be concerned with spirituality. We should just read the books from the prophets, and we should try and lead a good life, which is very, very difficult to do in this world. And for whatever reason, they've not practiced spirituality, and they were stuck with the rituals, and they weren't able to enlighten their hearts. And then there was those that have been living a very sinful life. They didn't practice a religion. But somehow or another, those people, even not practicing a religion, they put their trust in a spiritual master. They felt well, obviously they would have had to have that loving soul to start with and affirm that in the primordial times. But even without a religion or reading any holy scriptures, they just, either on ALRA TV, Yeah. through the internet, or through a Mind, Body and Soul Expo, or somebody's given them a leaflet on the roadside, and they've managed to get their hearts enlightened. And they went on to, they'll be recognized by God because of their shiny hearts. Exactly. And this is what we've said before about the stars. It doesn't matter the name of the stars, neither does it matter the religion. It's very much a fact that the souls are not the ones with the religion, are they? It's the body that has the religion. The souls came from the realm of souls where there were no religions. We were all together. All the souls were together and loved each other. And then these souls were placed into a body, and that body had the religion. Yes, It's just, we So really got to clear, get yes. that message out to people, that they can really understand it. Once it's there, you just think of Everything everything will in a be different like, light, don't you? yes, it's like the secrets are revealed to you, right? So, and once it is clear, gradually all the fog in front of our eyes, whatever we have actually, is gonna wash out, right? So, and everything will become so simple and clear, like what is happening, why is this process. And I mean, I've touched upon a few times already that, okay,
as I've studied the applied and sciences related subjects, so I always believed in practical. So after you practice and you start getting the benefit right away, you become believer of it, right? So all you need to do is, if you are a true seeker, just start the process and experience and feel by yourself. So feeling is believing, that Sufi master touched and talked about few times, right? Okay. It's not about seeing is believing, it's feeling. So you need to feel that. Once you start feeling these things, it's gonna be very very clear and for you. Another point which was highlighted by spiritual master afterwards or later on in this discussion was about presence of God, that God is there for sure, there is no doubt. Religions tell us about this and we believe in it, of course. He is there always, but we are the one who need to uh, have this capability, in fact, actually in us, so that we get registered, or our presence get registered in front of God, Yes. right? So spiritual master again gave a beautiful example that we have so many mobile devices nowadays, right? So unless your device has a SIM from a network, you are not going to be connected to the network, and then you will not be able to receive any data packets, voice packet or whatever, etc. You're so So the wonderful. precondition is these devices. If you open an iPhone pin pack and you don't have the SIM to put in it, it's not going to have any connection established. The same thing, value of iPhone is not there Yep. until and unless you have enabled either a Wi-Fi network on it and you have a Wi-Fi connection somewhere, or you have a SIM card which goes in it, which enables it to connect to the network and get benefit, whether through the VoIP voice or through internet or so. The same way that all of us in this world are in front of God, are here in fact, but not recognizable, not recognized because we haven't really registered ourselves. Once our hearts are shiny, we get registered in front of God or with Him, and subsequently, doesn't matter whether a Hindu enlightened his heart, or a Jewish person, or Christian, or a Muslim. God, we already talked about, He doesn't care about those things. The registration process requires, its condition is, you have to have a stand out presence with a shiny heart. Once that registration is complete, then the God is always going to basically be able to recognize, have a connection, see you, and then we will be in constant connection with the God. Yes. And those manifestations, those telephonies will fall upon Exactly. those ones with the that have made themselves visible and made themselves known. Oh, it's wonderful. Right. So, how does God find you? It was a wonderful chat. I Was mean, very tomorrow you have to put in your diaries to join the Prelude show at 9 o'clock, because we're going to talk about the spiritual anchorage, which was yes. an amazing topic. That is All it's of a these. huge topic that we're Hmm. going to cover tomorrow, and that was just mind blowing. We'd not heard these teachings before about the anchorage, the spiritual anchorage. Oh, that's going to be incredible. So please join us tomorrow at 9 p.m. And again, Xinlin Kualo, a very happy Chinese New Year to all our Chinese viewers and to everybody. It's the Chinese New Year, so we can recognize another new start for the new year. And it's the year of the rat. And to coincide with that, ALRA TV just released Sheikh Shakil's Universal Sufi Order introduction in Mandarin. It's wonderful. It's wishing people a happy new year in Mandarin, and it's explaining the Universal Sufi Order and how people can contact us. I mean, it's a wonderful video. So please, Very, very, yeah, very, very, very beautiful video and perfect timing, I would add. yes, So yes, exactly. So
as you said, from my side as well, I just want to wish all the viewers from Hong Kong. We also have a team there. So Gong Chi Fat Choi, which is Happy New Year in Cantonese language to all of our viewers as well. So uh, wish you a very prosperous Chinese New Year this year. And I think the important point is that this beautiful message in Chinese language that Sheikh Shakil is explaining, we need to just take this as an objective, right? So that we are going to spread this message as much as possible Yes. in the people throughout the world, in the Chinese community and the Chinese speakers. For that, I just want to add a couple of things, in fact, or as a suggestion from my side. So for both Mandarin and Cantonese users, I think if you just use these wishes, is Gong Shi Fa Choi for Cantonese speakers or so, and tag this video to them. So tag these into the Chinese forums or so, and Xingnin Fa Loi, which is the Mandarin wishes for the Chinese New Year or so. Our people should simply tag these with the best wishes or Chinese New Year wishes, these video in the forums, Yes. so that the message goes and spreads across the world, in fact. And I'm pretty sure this is a very short video or so. We will find like, okay, speakers who will get connected, the phone number and rest of the details of ALRA TV, and Sheikh Shakil are there on the in the video as well. Like, so Let's get that up to it should be, we should have that on 1,000 views by the end of tomorrow. So let's make that our target. exactly. We start sharing that out there. And it's amazing at the moment. If you do search on YouTube for Chinese Sufi or Chinese Sufism, that video is coming up now. Sheikh Shakil's video is coming up on the suggestions. So that's really wonderful. That's going to Indeed. really get us out there. And I'm going to mention Sister Tatiana, Sheikh Tatiana over in Mexico. She's been doing wonderful work again. Wow. She's translated the Sufi course into Spanish. And as we know, that she's been putting it on television channels, but she's also out there live. She's hiring classrooms and sharing this Sufi message to the lovely people in Mexico. And there's a good mixture. You can see there's men there as well. I think she's just getting everybody all excited and ready for our tour, our Universal. This is going to be the first tour of Mexico under the Universal Sufi Order. Excellent. So very, very exciting times are coming this year. I won't be with you next weekend because I'll be conducting the very first Mind, Body and Soul Expo under the Universal Sufi Order. And that's going to be in Mannheim, just outside Frankfurt, like southern Germany. And that's going to be next weekend. So Universal Sufi Order is really going to take off in 2020. And as we've seen the beautiful programs in Nepal, and we've seen Universal Sufism in practice now, this has been going on for a few months, steadily. And now look in Nepal, you can see people from South Korea, you can see people from India, Hindus, Muslims, also Sikhs, all gathered there listening, sitting at the feet of Sufi Master and enjoying the talks. They're singing, they're all doing their own speeches and sing. This is always the dream. People are just doing their own thing, all under the umbrella of His Divine Eminence Goa Shahi. Everybody has the freedom to do their own thing. It's just incredible stuff. So that's going to come straight after the show. And we will see you tomorrow on Sunday. And then it's going to be Mission Report Monday. So if anybody's got any mission reports, we've got a few to cover over on Monday for Mission Report Monday. And I'm going to leave you with a beautiful article that was on Facebook today by Universal Sufi Order, and with an even more beautiful pictures to go along with it, which was
a real comparison of the events that happened sort of late 90s with his Divine Eminence Gohar Shahi in Lahore, with huge audiences appreciating this beautiful message, to the picture below of Sufi Master Younus AlGohar delivering a speech to a packed audience in Nepal. People thoroughly enjoying this is a beautiful image, these two together. Some 20 years apart, I would say, 20 years apart, but time is a mirage. So I'm going to read out what the Universal Sufi Order have put on Facebook. It's a beautiful statement that we can share. Share this as much as we can. It's beautiful. We call them Universal Sufis. We call them Universal Sufis. Why, you ask? Well, they speak different languages, come from different countries across the globe, vary in faith and cultural backgrounds. However, their desire, passion, and hunger is the same. Their hearts are connected with one type of magnet, divine energy supplied by His Divine Eminence Lord Rariaz Gohar Shahi. The magnetism of His Divine Eminence Gohar Shahi's universal love gathered them all together under the umbrella of peace and divine love. This is the enormity of His Divine Eminence Gohar Shahi's message of inclusiveness and spiritual harmony. This is how the world is going to change. One country, one city, one locality, one person at a time. Are you in? Wonderful. It's just absolutely love it. And we can take extracts from there if you want to share on Twitter. And very much when we do our introduction to the Universal Sufi Order, beautiful. Why are we universal? The answer's there. Beautifully written, and congratulations. So we'll see you tomorrow. Thank you very much, Sheikh Majid, and good evening to everybody. Thank you for tuning in. See you tomorrow, 9 o'clock on the Daily Prelude Show. God Office. प्यार का महासागर, और उसके ही दिल की भावनाओं से, उसके ही प्यार से हमारे सब धर्मगुरु यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो अभी हमारे यहाँ सूफी मास्टर यूनुस अलगोहर जी आप सबका बहुत दिल से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी 2-3 मेहमान बाद में आए, उसका हम थोड़ा स्वागत कर लेते हैं। हमारे जसबीर भाई सबको प्यार से स्वागत करेंगे। ये हमारे बुद्ध विहार से महाराज आए, उसका भी स्वागत करेंगे। यहाँ पूरे सनातन धर्म के भारत में जो 4 शंकराचार्य की पीठ है, वो 4 शंकराचार्य की पीठ का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आए हमारे
संदीप शास्त्री अर्जुन सिंह जी का भी स्वागत करेंगे, जसबीर भाई जी। और समग्र नेपाल में सिख धर्म का प्रतिनिधित्व जो करने वाले जो है, गुरु नानक सत्संग की ओर से, गुरुद्वारा की ओर से भाई गोविंद सिंह और उसकी टीम आई हुई है, उसका भी स्वागत विशेष रूप से हमारे भाई जी करेंगे। और एक दूसरे भाई का स्वागत हमारे करेंगे दिल्ली वाले जसबीर भाई जी करेंगे। अभी गुरुजी की अगर इजाजत हो तो 2-3 लोग और बोलना चाहते हैं, क्योंकि ठीक है, जैसी आपकी इजाजत। आप अगर चाहे तो दो लोग बोले, अगर आप चाहे तो आप जैसे कहो, ठीक है। मैं तमाम जो गेस्ट हैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों का, ब्रह्मा कुमारी के जो लोग हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। एक कुसुम में हमारी भी शिक्षा वही है जो हजर अस्वद आपने लगाया हुआ है। वाह वाह, बहुत खुशी हुई आप लोगों को। हाँ, वो मुझे ब्रह्मा कुमारी वाले मुझे लंदन में भी बुलाते हैं, श्रीलंका में भी बुलाते हैं, तो हम बहुत प्यार करते हैं उन लोगों से। गुरुजी आपका बहुत सम्मान करने के लिए भी आए हैं। मिलके मुझे बड़ी खुशी होती है। आपका सम्मान वो दिल से करना चाहते हैं, आपका सम्मान किया जाए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से। मुझे इन लोगों से बड़ा प्यार है, तो ये आप लोगों का खास सम्मान करने आए हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हमारे गुरु जी यूनुस अलगोहर जी का बड़े दिल से सम्मान हो रहा है। तो ये विद्यालय की ओर से हमारी प्यारी प्यारी बहनें और ब्रह्मा कुमारी भाई आए हैं, तो विद्यालय की ओर से बहुत प्यार से सम्मान कर रहे हैं सूफी मास्टर यूनुस अलगोहर जी का। विद्यालय की ओर से बहुत बड़ा प्यारा सम्मान हो रहा है। ये सम्मान राविया गोर साहिब जी का सम्मान है, ये सम्मान हमारा अल्लाह ताला का सम्मान है, और हमारे प्यारे गुरु जी यूनुस अलगोहर जी का सम्मान है, हमारा सबका सम्मान है। बुद्धिज्म हो, हिंदुज्म हो या हमारे सिख भाई हो, इनकी मंजिल तो एक ही है, लॉर्ड बुद्धा। यही तो हमारा मिशन है, एनलाइटनमेंट। बुद्धा का मतलब है एनलाइटेड वन। एनलाइटनमेंट की ही आज जरूरत है, और अगर हम सब मिल के इकट्ठे होके फिर अगर मनुष्य की सेवा करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। मैं आप लोगों का अपने दिल की गहराइयों से
स्वागत करता हूँ। बाद में सबसे पहले मैं अपने मोहतरम भाई वीर जसबीर सिंह संधू साहब को इनवाइट करूंगा कि वो हमारा मिशन बयान करें। सरकार सईदी जी ते तमाम गौरियंस को गौर से क्योंकि मुर्शद दे हुंदियां बोलन दी जे लोड़ नहीं होंदी। सरकार आप ही सब कुछ जानते ने, बुजुर्ग आप ही सब कुछ जानते ने सूफी मत दे विच, क्योंकि मुर्शद की बड़ी बहुत बड़ी अहमियत है जिसकी आप बयान नहीं कर सकते, क्योंकि मुर्शद ही सब कुछ होंदा है। ते सरकार ने बड़ी कृपा की है, बड़ी नज़र की है साडे उत्ते, आप जी के आशीर्वाद बख्शे ने। सारे धर्मां नूं उस परमात्मा के नाम नूं सिमरन, एक तो साडी जबान अल्लाह अल्लाह वैगुरू वैगुरू परमात्मा का नाम जपदी है, ते साडे दिलां नूं भी उस परमात्मा के नाम से लाया है। बहुत बड़ी गल है, ऐसे महापुरुष, ऐसिया महान ताकत इमाम मेहंदी रियाज अहमद गौर शाह जिन्हों ने लखां लोगों के दिलों दी धड़कनां दे नाल उस परमात्मा के नाम नूं सिमरन कराया। अज साडे मुर्शद प्यारे सईदी जी जिन्हां दा मैं बयान ही नहीं कर सकता, मेरे को कोई अल्फाज ही नहीं, इस सूफी मत नूं पूरी वर्ल्ड दे विच फैला देता है। ते हजरत सैयद पीर बाबा शेर शाह वाली सरकार दी नजरो करम सदका, इमाम मेहंदी रियाज अहमद गौर शाह सरकार दी नजरो करम सदका इत्थे खड़े हैं, अज सरकार के कदमां दे विच खड़े हैं। इत्थे लेके आने वाले कौन सन? ये बुजुर्ग, ये महापुरुष। कुछ टाइम पहला असीं भी कोई मुर्शद दी भाल दे विच सां कि सानू कोई ऐसा सतगुरु मिले, ऐसा महापुरुष मिले जिहड़ा वो परमात्मा, क्योंकि इंसान की जो रूह की खुराक आ, रूह की खुराक वो कामल मुर्शद ही दे सकता है। वो ने कामल मुर्शद साडे बहुत ही प्यारे सईदी जिहड़े कि इस मिशन नूं कोने कोने तक पहुंचा देता है, कोने कोने तक, हर इंसान तक, जिन्हें भी गुनाहगार आ उन्होंने भी उस परमात्मा के नाम के नाल जोड़ देता है। ते मैनूं भी ख्वाब दे विच सरकार दा, मैं चुप करके बैठा सी, ख्वाब दे विच भी सरकार ने हाँ दस्या भी सरकार सईदी जी उन्होंने मिलो। कि मैं एक रोजा मुबारक के उत्ते मजार के उत्ते एक सेवादार बाबा शेर शाह वली जी, एक सेवादार झाड़ूदार है उत्थे, ते जद भी सरकार दे कोई दुआ बेनती की, जब मैं मजार वाल वेखदा है ते सईदी जी, जब मैं थोड़ा ऊपर वाली साइड से देखता सईदी जी, जब मैं मजार तो बाहर आना है ते सईदी जी। ये साडे दिलों दे विच वसे हुए ने, साडी हर दिल की धड़कन ने सईदी जी। रब नूं की मिलना, मुर्शद मिल गया तो रब मिल गया, अल्लाह मिल गया, इस तो ऊपर की हो सकता है? होर की चाहिए सानू? हाँ जी। ते देखो साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, दुनिया नूं एक करन दी खातर कि सारी दुनिया की वो परमात्मा दे नाल इह धर्मां दा जिहड़ा चक्कर पिया है कि इहदे विचों कढ के सारे नूं एक दे परमात्मा दे नाल जोड़िया जाए, एक कीता जाए।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਈਦੀ ਜੀ ਆ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਰੱਤਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਾਈ ਬੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਰਜਤ ਅਲਫ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੂੰ ਬਾਜ ਫਕੀਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹੂ ਇਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਚੋਰ ਅੰਦਰ ਦਾ। ਜਦ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਫਸ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਹੀ ਸੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਟੀ ਕੱਚੇ। ਪਿਓ ਕੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਚਿਹਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਵੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨੇਪਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੀਣੀ ਮਰੀਦੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਬੰਦਗੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਮਜਦ ਭਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਫਰੀਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਲੜ ਛਿਜਣਾ ਪੀੜੀ ਪਾਈ ਗਣ ਤੈ ਜਗਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਜਗ ਡਿਠਾ ਹੜ। ਜਿੰਦ ਵੋਟੀ ਮਰਨੋਂ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਜੋ ਲਿਖੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਆ ਵੋਟੀ ਆ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਰੌਣੀ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਲੜ ਪਕੜਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜੁਰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਈਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਕਿਉਂ ਜਦ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਖੋ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਈਦੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया जसबीर भाई आपका। मैं भी इसी मंच पर हमारे मोहतरम दोस्त राजेंद्र निगम बाबू को निमंत्रण देता हूँ। मेरी फाउंडेशन इंटरनेशनल यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर के ओर से ऑर्गेनाइज किया हुआ इस प्रोग्राम के हवाले से
जो हमारा मिशन है, हमारा विजन, मिशन, कमिटमेंट है, इस हवाले से दो अल्फाज वो कहें, हम तमाम को इस हवाले से थोड़ा बताएं। मैं अभी इन्वाइट करूंगा राजेंद्र निगम भाई को। जय गौहर शाही। जय गौहर शाही। सबसे पहले हमारे पूजनीय गुरुदेव जी महाराज श्री श्री 1008 श्री सैयदी यूनुस अलगौहर के चरणों में कोटि नमन। दोस्तों, आज इस दुनिया में धर्म के नाम पर इतना गड़बड़ी पैदा हो गया है। आज जनमानस जो है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुकी है। दोस्तों, धर्म का मतलब धारण करने वाला होता है और धर्म में सद्विचार होते हैं। धर्म विशेषता है प्रेम, अहिंसा और सदाचार। दोस्तों, ये धर्म की विशेषता आज के दौर में किसी धर्म में दिखाई नहीं दे रही है। अगर कहीं दिखाई दे रहा है, वो विशेषता सिर्फ जुबान पर है, वो विशेषता दिल में नहीं है। हम जो भी धार्मिक किताबें, जो भी हमारे ये हस्तलिखित हो या आसमानी किताब हो, जो कुछ भी है, आज वो किताबें भी हमको हिदायत करने में नाकाम साबित हो रही हैं। दोस्तों, इस दौर में जब ये किताबें हमारी नाकाम, हमारे वेद, पुराण, कुरान, इस बात पे विचार करना होगा कि आखिर क्यों इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि आ रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे ये प्रवचन सुना रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गोष्ठियां हो रही हैं, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में जो है सर्व धर्म समभाव के तमाम सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, फिर भी जनमानस के अंदर से ये बुराई क्यों नहीं जा रही है, इस बात पर ख्याल करना होगा। दोस्तों, हम सब आपस में भाई भाई हैं। ये नफरत फैलाने वाला कोई दूसरा कारक है, उस कारक को समझना होगा। और ये समझदारी सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, रूहानी इल्म के जरिए होगा। और इस इल्म के लिए हमारा ये तंजीम मेहदी मशीह कल की अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से सारी दुनिया को अता की जा रही है। दोस्तों, हम लोग, हमारी तंजीम दुनिया को वो इल्म मुहैया करा रही है जिस इल्म के जरिए इंसान के अंदर वो छुपा हुआ शैतान, जिसके वजह से सारी दुनिया में फसाद हो रहा है, उस शैतान का जो है इस्लाह किया जाता है, उस शैतान को दिल से निकाला जाता है। और वो इल्म है रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी। इसकी शुरुआत हमने बताया है कि पहला, इस धरती का पहला खलीफा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर जी ने इस इल्म की इब्तिदा की। वो हमारे मुस्लिम भाइयों में
उनको जो है हैरते आदम सफीउल्लाह कहते हैं। हमारे पहले खलीफा हैं, जिस जमाने में हमारा पहला खलीफा आया उस जमाने में कोई धर्म नहीं था, न मुस्लिम था, न सिख था, न ईसाई था। उस जमाने में कोई नफरत नहीं थी, सब एक थे। और आज के दौर में इतने ज्यादा फिरके बन चुके हैं, इतने मतांतर हो चुके हैं। आज हम सबके ऊपर शैतान का गलबा है। आज जरूरत है फिर उसी इल्म के जरिए इस शैतान को अपने समाज से निकालने का, और ये सिर्फ और सिर्फ इसी इल्म के जरिए होगा। हमारी सरकार गौहर शाही जी महाराज ने ये इल्म हर आमो खास के लिए ये जो है आम कर दिया है कि हर आमो खास अपने दिल में रब का नाम लाए। मैंने बताया था हैरते आदम सफीउल्लाह को, भगवान शंकर को इस दुनिया में भेजा गया तो फरिश्ते ये एतराज भी किए थे, आखिर क्यों आप भेज रहे हैं? अल्लाह ने कहा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो। वो इल्म है, हम अपने नामों का इल्म दे रहे हैं, जिस नामों के इल्म के जरिए अब इसके अंदर जो है ये छुपा हुआ जो ये कीटाणु है, शैतान है, इस इल्म के जरिए वो मारा जाएगा। इस इल्म के जरिए इसके अंदर छुपे हुए बहुत सारे प्राण हैं, उन प्राणों को जागृत करेगा और वो जमीन पर रहेगा और आसमान पर भी चला जाएगा। वो इल्म है अस्मा का इल्म, वो इल्म है नामों का इल्म। वो इल्म आज हमारी सरकार से यदि यूनुस अलगौहर के कदमों से ये फैसली दरिया जा रही है, वही अस्मा का इल्म है। हिंदू भाई राम राम कहते हैं, मुस्लिम भाई अल्लाह अल्लाह कहते हैं, ये हमारे ये पंजाबी ये भाई लोग वाहे गुरु कहते हैं। या मुख्तलिफ समाज में मुख्तलिफ नामों से भगवान को पुकारा जाता है। किसी भी नाम से अपने दिल को चमका ले, ये हमारे गौहर का पैगाम है। हमारी दुनिया में अमन लाने का एकमात्र वाहिद तरीका, वो जो पहला खलीफा जो वो इल्म लेके आया, फिर आखिरी खलीफा भी उस इल्म के जरिए सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर रखेगा। यानी इसमें जात पर यानी भगवान के नाम पर सारी जमहूरियत को एक करके रखेगा। वो कहलाएगा भगवान काल की अवतार। सारे धर्मों में, सभी धार्मिक किताबों में मुस्तकबिल में यानी जो आखिरी दिन चलेगा, जिस दौर में सारे लोग अपने अपने दीन धर्म से फिर जाएंगे, सारे लोग जो है शासन से दूर हो जाएंगे। शासन धर्म है, जो धर्म से जुदा हुआ शासन से दूर हुआ। हर आदमी अनुशासित हो जाएगा, यानी लोगों का दिल जो है भगवान के नाम से खाली हो जाएगा। वो सबका दिल उस दौर को, उस कलयुग में एक ऐसी हस्ती आएगी, हिंदू कहते हैं काल की अवतार, मुस्लिम कहते हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, हमारे बुद्धिज्म के लोग कहते हैं मित्र आएगा, हमारे जैन मत के लोग कहते हैं तीर्थंकर आएगा, हमारे जुडिज्म में लोग कहते हैं वो समावील आएगा, और भी हमारी कौम है वो कहते हैं नहीं उदखील आएगा, जो हम सबको एक करके सबके दिलों को जोड़ देगा। आज हमें उस रावण की
सारी दुनिया का रहबरी करे, सारी दुनिया को एक में मिला दे, सारे मानव आत्मा को भगवान के चरणों से जोड़ दे। आज उस हस्ती की जरूरत है और वो हस्ती इस जमीन पर आ चुकी है। हमको पहचान की जरूरत है कि हम उसको पहचान लें, तो फिर मेरा कायाकल्प हो जाएगा। अब ये पहचान अभी हम यहां कहें कि ये पहचान यहां है, तो आप कहेंगे तो इंसान बना सकता है। ये पहचान नीचे है, कहेंगे नहीं नहीं ये तो इंसान बना सकता है। लेकिन इतनी बड़ी हस्ती का शिनाख्त वो परमेश्वर ही करेगा। हमारा आपका शिनाख्त गलत होगा। आसमान में देखिए, चांद में देखिए, सूरत गौहरशाही। क्या बात है। सूरज में देखिए सूरत गौहरशाही, चांद में देखिए सूरत गौहरशाही, मंगल ग्रह पर देखिए सूरत गौहरशाही, नेबुला स्टार पर देखिए सूरत गौहरशाही, महाशिवलिंगम में देखिए सूरत गौहरशाही। और नीचे क्या देखिए, नीचे देखिए वो अस्माए मुबारक, इसमें जात का इल्म और उसकी फैज की दरिया आपके कदमों से गुजर रही है। चांद में देखिए सूरत गौहरशाही, 3 बार हिंदू भाई कहे राम 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 राम, और वो राम का सतनाम में उतर जाता है। आज तक किसी ने नहीं कहा था कि दिल भी बोलता है। आज हमारे सरकार गौहरशाही की ये फैजान है, ये फैज है कि आज हर आमो खास का दिल भी बोलता है। हम अब तक नहीं जानते थे ये जुबान बोलती है, हम यही जानते थे। हमको ये पता थी कि मेरा दिल भी राम राम करता है। ये इल्म हमारे सरकार के पाए मुबारक से मिला। हमको ये मालूम नहीं था एक इंसान के अंदर 16 इंसान रहते हैं। ये इल्म हमारे सरकार गौहरशाही के कदमों से मिला। हमको ये इल्म नहीं था कि दीदार इलाही होती है। हम तो दीदार इलाही पर आज तक जो है कशमकश में रहे। आज दीदार इलाही आम है। ये हमारी सरकार के कदमों की मेहरबानी है। हमको ये पता नहीं थी भैया कि अपने इस ढांचे में, इस स्थूल शरीर में अंदर कितने सूक्ष्म शरीर छुपे हैं। मेरे सरकार ने बताया, बच्चों तेरे अंदर एक नहीं, तेरे अंदर 16 आत्माएं, सूक्ष्म आत्माएं छुपी हुई हैं। वो तेरी तरह बोलती हैं, वो तेरी तरह अल्लाह अल्लाह करती है, वो तेरी तरह राम राम करती है। ये तो हमको नहीं मालूम था, ये दुनिया वालों को नहीं मालूम था। आज वो चीज आम हो चुकी है। हर आमो खास कह रहा है, चांद को देखा 3 बार राम राम किया, रात को सोया दिल धड़क उठा। चांद को देखा 3 अल्लाह अल्लाह किया, वो मुसलमान का दिल धड़क उठा। अल्लाह 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 अल्लाह। अब वो अल्लाह अल्लाह होती है। मेरे सरकार ने फरमाया, जब दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह समा जाए तो जानते हो क्या होता है। मेरे सरकार ने फरमाया, अब तक ये इल्म आम नहीं थी। मेरे सरकार ने फरमाया कि जैसे पत्थर से टकराता है ना, जैसे पानी से टकराता है तो बिजली बनती है, उसी तरह ये दिल में राम राम अल्लाह अल्लाह टकराता है तो ज्योति बनती है। ये इल्म किसी ने नहीं बताया कि इसमें जात अल्लाह टकराने से नूर बनता है।
घंटे 72 घंटे राम 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 की जाती है। उसका मतलब आज तक दुनिया नहीं समझी। उसका मतलब यही था कि राम राम टकराओ और ज्योति बनाओ, और वो ज्योति अल्लाह अल्लाह टकराओ, नूर बनाओ। हम क्या कर रहे थे? बाहर नूर बना रहे थे। मेरे सरकार ने फरमाया, बच्चों तेरा नूर पार हो रहा है, उसको अंदर डालो। मेरे सरकार ने फरमाया, दिल की धड़कनों में राम राम कहो, दिल की धड़कनों में अल्लाह अल्लाह कहो, वहां जो नूर बनेगा तेरे खून में जाएगा, और तेरे खून में जाएगा तो फिर जान जा, तेरा धड़कन 1 घंटे में 3 से 6 हजार बार धड़कता है। 24 घंटे में 1.25 लाख के तकरीबन धड़कन होती है। अगर दिल की धड़कनों में राम राम समा गया, 24 घंटे में 1.25 लाख राम का जाप हो गया। मैं 72 घंटे राम राम करता रहा, हाथ से, बाहर, मुंह से, जुबान से, थक गया। ये तो थकता ही नहीं है, ये तो थकता ही नहीं है। ये शुरू राम राम, तुक्ता उम्र राम राम, यहां तक मैदान महशर में राम राम। ये तो किसी ने बताया, ये तो मेरे सरकार ने बताया। दोस्तों, नूर, ये ज्योति जब बन जाती है तो मेरे सरकार ने फरमाया कि तेरे अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है ना, वो सूक्ष्म आत्माएं उसका भोजन करती हैं। ये कोई नहीं जानता था, आज तक किसी ने नहीं बताया कि आत्माएं अंदर है और वो खाती भी है। उन आत्माओं का भोजन वो नूर है, वो ज्योति है। हमारे इस्लाम भाई उन आत्माओं को रूहें कहते हैं। बाकायदा नाम है हदीसों में, कल्ब, रूह, शीरी, खफी, अफ़ा, अन्ना, नफ्स। हमारे हिंदू भाई कहते हैं ये इंद्रियां हैं, ये 6 इंद्रियां हैं, 7 इंद्रियां हैं। वो इंद्रियां ही वो लताइफ है। वो इंद्रियां क्यों मालिक ने डाला? उसका 2 काम है, एक जाहिर काम है और एक बातिन काम है। जाहिर काम तो ये है देखना, जाहिर काम तो है जो जाहिर हो, दुनिया देख रही हो। बातिन वो काम है जो इंद्रिया करती हो, दिखाई नहीं देती है, इन आंखों से नहीं दिखाई देती, इसलिए इंद्रिया कहते हैं। कुछ लोग, कुछ धर्मों में इन इंद्रियों को, इन आत्माओं को, इन प्राणों को चक्राज कहते हैं। चक्राज दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि ये प्राण जो है ऊर्ज्वान्वित होके नूर का गिजा लेके राम राम के जो ज्योति है उससे ताकत पकड़ के ये इसमें से निकल के उड़ जाती है, इसलिए इसको चक्र कहा गया। ये इसमें चालन है। चक्र का मतलब ये हुआ बहुत तेज घूमने वाला, ये बहुत तेज घूमने वाला। जब ये जो है अंदर, जब ये ऊर्ध्वान्वित हो जाता है तो फिर यहां जमीन पर बंदा सोया है, ख्याल किया प्रभु आज इस वक्त क्या कर रहे हैं, बस आंखें बंद किया, यहां से निकला वहां पहुंच गया। ये किसी ने नहीं बताया, ये सरकार के कदमों की मेहरबानी है। आज दुनिया में ये इल्म आम किया जा रहा है। दोस्तों, दीदारे इलाही किसी जमाने में कल्पना था, सपना था, ख्याल था। आज दर हकीकत दीदारे इलाही होती है, और ये हमारे सरकार गौहर शाही की कदमों की मेहरबानी से। दोस्तों, इतनी बड़ी उपलब्धि इस दुनिया को किसी ने नहीं दिया। जो इतनी बड़ी उपलब्धि दुनिया को दे दे वही काल की अवतार है। वही इमाम मेहदी है, वही वकील है, वही समाधि है, वही मित्रा है, वही दिन कर
जिसके नजरे करम से हर आमो खाश दीदार इलाही तक जाए। पहले जमाने में दीदार के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए, ईश्वर के सामने साक्षात्कार के लिए बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। वो मशक्कत जंगल में जाके अपनी नफूस को, अपनी नाभी आत्मा को पवित्र करता था, तो जो है अंदर जो है ज्योति जाती थी, तो आत्माएं जागृत होती थी। अब इस जमाने में ये सारा झमेल खत्म, अब तो उनकी नजरों से अता हो रही है। ये नफस का मामला जिसकी वजह से सारी दुनिया में फसाद है, उसकी के लिए जंगल में जाना पड़ता था, घास फूस को सोना पड़ता था, पत्तियां खानी पड़ती थी। आज वो नफूस मेरे सरकार की नजरों से खाक हो रहा है। बहुत लंबा सफर तो बचा दिया इन्होंने नफस को नजरों से पाट करके। अब तो हमको आगे ही जाना है, अब तो हमको कोई रोक नहीं सकता है। सबसे बड़ा बैरियर नफस है, सबसे बड़ा बैरियर जो है ये नाभी आत्मा है, जो हमको फितरत में डालती है। लेकिन उधर शैतान कहा कि या अल्लाह पाक तेरी जात की कसम, इसको हम तेरे कल्ब तक नहीं जाने देंगे, इसको हम दाढ़ी और टोपियों में इसको बांध कर रखेंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां पड़ने दूंगा, लेकिन तेरे कदमों तक नहीं जाने दूंगा। दोस्तों यह बात ख्याल रखे, वो जाएगा। उसको जलन इस बात की थी कि इस आदम के अंदर सामान तू रख रहा है, यानी अंदर सूक्ष्म आत्माएं रख रहा है, इंद्रियां रख रहा है। इन इंद्रियों के जरिए ये तो तेरे कदमों तक पहुंच जाएगा, और हम जहां है वही रह जाएंगे। हमारे आलिम हजरत कहते हैं नहीं नहीं, वो आग से बना था, ये मिट्टी से बना था। क्या मतलब? वही आग से मिट्टी से वाला मखलूक है, वाला मखलूक है। आज सूरज पे जो मखलूक है सब तो आगे के बनी है, हमको क्या लेने देना है उससे? हमको कुछ लेना देना है? हमसे क्या जलन होगी? जलन तब होगी जब आपका बगलगीर कोठे पे चढ़ के झांकता है और नीचे वाला ताकता है। यह बात थी, असल बात यह थी। तो शैतान जो है कहा कि ये तो चला जाएगा ऊपर। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो तू तो जब धर्म आएगा तो टोपी हम तुमको बांध देंगे, तुम्हारी दाढ़ी जो है घुटनों तक बढ़ा देंगे, लेकिन इसकी तरफ आने नहीं देंगे। ये कौन है? इसकी तरफ कैसे जाएगा? इसमें जात अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, अल्लाह का नाम अंदर जाने नहीं देंगे, राम का नाम अंदर जाने नहीं देंगे, इसी में फंसा देंगे। आज सरकार गौहर शाही की ऐसी करम नवाजी है कि इन्होंने खुला काउंटर कर दिया है। आ जाओ, आ जाओ, ये इसमें जात ले जाओ, आ जाओ। इतनी बड़ी करम नवाजी कभी हुई थी? पिछले अखबार में हुई थी? दोस्तों एक चीज बता दे, जितने अंबिया आए उन्होंने फैज तो दिया अपनी उम्मत को, अपनी उम्मत को दिया ना। हैते आदम आए अपनी उम्मत को फैज दिए, हैते मूसा आए अपनी उम्मत को दिए, हैते ईसा आए अपनी उम्मत को दिए, और इमामुल अंबिया आए वो भी अपनी उम्मत को दिए। लेकिन आज सरकार गौहर शाही आए हैं, आज की फैज की दरिया सबके लिए खुली है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, या बिना धर्म का हो। आज तू भी आजा जो किसी अंबिया को नहीं माना, आज तू भी आजा जो जीवन भर गुनाह करता रहा, आज तू भी आजा जो तेरे नाक पर तक गुनाह भरा हुआ है। आओ तुमको धुल दे रहे हैं। ये सरकार जलवा फरोज है। सरकार कोई आके तो देखे, कोई
कोई करीब आ जाए, भूल नहीं जाए तो जो कहो सो तैयार। आकर तो देख। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में काम है, आप आए और दूर से ही आजमा के चले जाए, आजमा तो ले। ये ऐसा इस तरह नहीं बोला जा रहा है, ये चुनौती जो दे रहे हैं ऐसे वैसे नहीं है। हम अपने बराबर के सामने कह रहे हैं, आजा तू जिगरी कल ले जा, आजा तू राम का सिमरन ले जा, तेरा दिल न धड़क उठे राम राम से, तो फिर कहना ये झूठा था। जब सबके दिल में राम आ जाएगा, जब सबके दिल में अल्लाह आ जाएगा, तो क्या होगा? राम और अल्लाह का भेद मिट जाएगा। आज तक हमारे जितने ऋषि महर्षि गुजरे हैं, किसी ने भगवान का तस्वर ज्योति से कहा कि वो ज्योति का पुंज है, किसी ने कहा नहीं वो हमारे गुरु के शकल का है, किसी ने कहा नहीं उसकी शकल ही नहीं है, किसी ने कहा किसी उसका पैर ही नहीं है, किसी ने कहा उसकी आंख ही नहीं है, किसी का कान ही नहीं है। तरह तरह का तस्वर पेश करता रहा है आदमी। लेकिन आज हमारे सरकार गौहर शाही की कदमों की मेहरबानी कि हमको जो दीदार किया है वो आंख वाला, नाक वाला, हाथ वाला, बोलने वाला चला, उस रब का दीदार हमको कराया है। हमने उस रब को देखा है जो बोलता भी है, हमने उस रब का दीदार किया है जो चलता है, हमने उस रब का दीदार किया है जो क्रिकेट भी खेल सकता है। दोस्तों, मैं इस समय तो बहुत ज्यादा ले रहा हूँ, मेरा दिल नहीं भर रहा है। मैं कितनी कितनी मेहरबानियां गिनाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है। आज वो वक्त आ गई है, उस आखिरी खलीफा को पहचान लिया जाए, इसी में मेरी भलाई है। वरना हम कहां जाएंगे? रब नाराज है, रब नाराज है। तो हम उस खलीफा को पहचान लें। तरीका यही है, हम लोग उस खलीफा को पहचान कराने के लिए ये मिशन जो है हम लोग कर रहे हैं कि दुनिया जान जाए, अपने नफूस को पाक कर ले, अपने दिल को इस्लाह कर ले और अपने मंजिल तक पहुंच जाए। जाहिर है हर इंसान की मंजिल उसका रब होना चाहिए, हर इंसान की मंजिल रब होना चाहिए। सारे अंबिया अपने उम्मत को रब तक पहुंचाने के लिए एड़ी से चोटी लगा दिए, लेकिन हमारे सरकार गौहर शाही ने सबके लिए एड़ी से चोटी लगा दी है। सबके लिए जाओ जाओ। ये हमारी सरकार की फैज है, ये बड़ा सुहाना मौका है। अगर आपको बात मेरी समझ में आई हो, जो भी भाई जहां से आए हो, जिस धर्म से, हमको नामों से नहीं लेना देना है, हमको धर्म से लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ रब से मतलब है। क्या बात? रब तक जाना चाहते हो तो फिर मेरे साथ, मेरे मालिक के मुखार बिंदु के साथ, अगर तू राम राम कह दे 3 बार हिंदू भाई राम राम चला जाएगा। अगर तू मुस्लिम भाई है तो 3 बार अल्लाह अल्लाह कह दे तो अल्लाह अल्लाह चला जाएगा। आज वो सुहाना मौका है। हमारे ख्याल से सारे लोग जिक्र कल हासिल कर चुके हैं। अगर का नाम जिसके अंदर डालना है तो मेरे साथ बोल दे रा राम रा राम रा राम, आपको सिमरन मिल जाएगी। बोले रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम रा राम।
आप गेस्ट को जो बुला रहे थे बुला लें। राजेंद्र भैया ने सबको बहुत बहुत नवाजा, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं यहाँ सनातन धर्म से आए हुए, लेकिन अभी आपको सुनने के लिए हम सब इंतजार है, आपकी परमिशन मिली है, इसलिए सबको टाइम की मर्यादा में चलना होगा और जिसको चांस नहीं मिलेगा उसकी मैं अभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत गुरुजी के प्यार से आप सब लोग आए हैं और आपको सबको टाइम कम भी मिल रहा है और किसी को नहीं भी मिल सकता है, लेकिन आप सबकी ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ। इनवाइट करें जो ठीक है, तो पहले आप आ जाएंगे, आप आपका विचार, लेकिन टाइम की मर्यादा में, बहुत लंबा नहीं करना है, ठीक है? एक मिनट, आप पहले आ जाइए क्योंकि आपको जाना है, मुझे जाना। ये भारत में जो शंकराचार्य की 4 पीठ है उसके ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो अभी आप यहाँ आके आपकी बात रखें। शास्त्री जी अर्जुन जी है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वप्रथम तो मैं समिता शास्त्री अर्जुन प्रसाद भास्कर, मैं स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित विश्व धर्म संघ जो 1893 में शिकागो में गठन हुआ था, उसका मैं विश्व शांति दूत हूँ सर्वप्रथम। उसके बाद में मैं ये पद्मनाथ मंदिर का ट्रस्टी भी हूँ मैं, और शंकराचार्य जो 4 पीठ है उनको कोई भी वैदिक समस्या आती तो उसका समाधान करता हूँ, इसलिए 4 पीठ से भी जुड़ा हुआ हूँ मैं। और मेरी जो शिक्षा है वो किताबों से नहीं हुई है, श्रुति परंपरा जो वेदों में कहा गया है कि सुन के पढ़ना है, आपको सुनाया जाएगा, आप उसमें से पढ़ो, उससे जानो। श्रुति परंपरा से इसके वेदों का अध्ययन किया, उसको संहिता शास्त्री कहते हैं, वेद के मंत्रों को भी संहिता कहा जाता है। सर्वप्रथम तो मैं लोगों से निवेदन करूंगा कि आज जो है पूरी दुनिया बहुत ज्यादा भ्रम में है, भ्रम ज्ञान है लोगों को, सब अपने अपने भ्रम में घूम रहे हैं, किसी को भी वास्तविक ज्ञान नहीं है। ज्ञान के सिर्फ 3 ही स्रोत होते हैं, गुरु, ग्रंथ और गवेषणा। गवेषणा बोले तो रिसर्च। ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है, ग्रंथों से प्राप्त होता है, चाहे वो वेद हो, बाइबल हो, कुरान हो, कुछ भी हो, ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त होता है, ये निश्चित है। और गवेषणा, अपने रिसर्च से ज्ञान प्राप्त होता है। 3 ही स्रोत ज्ञान के, चौथे स्रोत ज्ञान का नहीं है। तो आज जितने भी लोगों में क्या है कि सबने अपने अपने भ्रम पाल रखे हैं, उस भ्रम से हमें निवृत्त होना है। मैं आज जो है विश्व के नासा में भी मेरे 25 प्रवचन हो चुके हैं, मैं उनको ग्रहों की गति और उसके मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, इफेक्ट ऑफ कॉस्मिक रे, हाउ सन इज बॉर्न, हाउ अर्थ इज मूविंग, ये वो मैं सिखाता हूँ उनको। आज जो है मैं विश्व के 13 विश्वविद्यालयों का मैं विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ, उनको भी मैं जितना मेरे से हो सकता है, जितने उनके भ्रम है, उस भ्रम को दूर करता हूँ। मेरा काम यही है। और आज मैंने पूरे विश्व को ये संदेश देता हूँ कि कलयुग हमारे संहिता शास्त्र के हिसाब से 5 भाग में बटा हुआ है। पहला भाग कली बोले तो उस युग में चाहे वो भगवान महावीर हो, भगवान गौतम बुद्ध हो, आदि शंकराचार्य हो, या मोहम्मद साहेब हो, या गुरु नानक साहेब हो, सबने खाली जैसे फूल की कली होती उस तरह से ज्ञान को प्रस्फुटन किया है, उसको कलियुग कहा गया। कली जैसे फूल की कली होती इस तरह से कलियुग हुआ। दूसरा उसके बाद आया कलायुग। पूरी दुनिया राजा प्रजा सब कलाकृतियां बनाने में लग गई, इतनी कलाकृतियां बन गई, चाहे वो ताजमहल हो, मिस्र की पिरामिड हो, या मतलब कि मेसोपोटामिया हो, या अंकोर भारत का मंदिर हो, इतनी सारी कलाकृति बनी कि हम
अपने जीवन भर चलते रहे भी तो भी पूरा नहीं देख पाएंगे, इतनी कलाकृतियां बन गई उस समय। इसको कला युग कहा गया। उसके बाद तीसरा युग आया जिसको कल युग कहा गया। कल कारखाना, मशीन एज, पूरी दुनिया मशीन बनाने में लग गई और उसने मशीन इतने बना दिए वो हमारे अच्छे के लिए अच्छा भी कर रहे हैं। तो कई हवाई जहाज एक्सीडेंट होके मर जाते, गाड़ी एक्सीडेंट होके मर जाते, साथ साथ में उसकी बुराइयां भी है। मशीन ये जो कल कारखाना बोलते ना हम, कल बनाया, कल युग आया। और उसके बाद में चौथा युग आया कला युग। पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, शहर शहर में युद्ध हुआ, देश देश में युद्ध हुआ। अब ये कला जो है आज हमारे घर पे घुस गया और इस तरह बुरी तरह से घुस गया कि सारे बड़े बड़े परिवार सब टुकड़े टुकड़े होके बिखर गए और छोटे छोटे परिवार बन गए। परिवार कोई संयुक्त परिवार कहीं भी नहीं रह सकता। इस तरह से पूरा विखंडन फैला गया कला। आज आप में और मेरे में कोई झगड़ा होने के लिए 1 सेकेंड की जरूरत है तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि कला युग में हम चल रहे हैं। बहुत बुरा है कला युग। इस कला से हमको मुक्ति, अब इसके बाद आने वाला युग तो आप सोच के भी हम अभी से हमारे रूह कांप जाएंगे, क्योंकि काल युग आएगा। किसी ने मेरे को मारा तो बोलेगा मैंने इतने बड़े एक विद्वान था उसको मारा, बोल तो आत्मगौरव करेगा। इसको कहते हैं काल युग आने वाला है। इस सबसे मुक्ति दिलाने के लिए हर धर्म में एक व्यवस्था रखी गई है कि एक तुम्हारा मुक्तिदाता आएगा, तुमको मुक्ति दिलाएगा। ये निश्चित है। चाहे अपने अपने धर्म के अपने अपने हिसाब से सबने अपने अपने अनुमान बना कर रखे हैं, उसके हिसाब से एक मुक्तिदाता आएगा। क्योंकि इंसान जो है ना वो आशा के डोरी उसमें लटकते रहता है। एक आशा की डोरी में हमको भी लटकना है कि हमारा भी मुक्तिदाता आएगा, हमको मुक्त करेगा। यही है हमारे वेदों का सार, यही है। हम इसी से बोलते हैं कि वेद बोलता है सर्वभूतो हिते रता, सबके कल्याण के लिए काम करो। जो सबके कल्याण के लिए काम करता है वही गुरु होता है, उसी से ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि वेद बोलता है सर्वभूतो हिते रता। तो वो हम ये चाहते हैं विश्व में शांति हो, और इसी नाते हम लोगों में जो भ्रम है, भ्रम को मत पालो। जो तुम्हारा अंदर का जमीन या आत्मा जो बोलता है उसी चीज को मानो, कि भ्रम को मत मानो। इतने कहते हुए मैं सभी से अभी विदा लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री साहब आपका। अपने चारों युगों की बहुत अच्छी तरह से बात करी। अभी बहन उसको भी सौगात दे के विदाई देंगे। हमारे गुरु जी की ओर से ये सौगात दी जा रही है। ये सौगात जो है हमारी गुरु जी की ओर से है। अभी मैं इनवाइट करूंगा हमारे पंजाब में जसवीर भाई जी जो काम कर रहे हैं ना मिशन का, और दिल्ली में ऐसा ही एक जसवीर भाई, ये दोनों जसवीर भाई और की ओर से और गुरु जी की ओर से हम अभी यहाँ जो गुरुद्वारा है उसके ग्रंथी साहब को इनवाइट करूंगा। भाई गोविंद सिंह जी अपन को बात करेंगे, सिख धर्म में क्या बात बताएंगे। परम सत्कार्यों गुरु खालसा जियों, आप सब समस्त धर्म का गुरु जी और बेनती है। गुरु नानक बाणी में हिंदू तुर्क राफजी इमाम साफी मानस की जात सब एक पहचान हो। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं शांति अमान शांति के बारे में। सो गुरु साहब ने अपनी वाणी में बोले, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा हुसैया, कोई अल्लाह।
भगवान का कोई रूप नहीं। बोलते हैं साच कहूँ सुन लियो सुबह, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। जिन्होंने भगवान से प्रेम किया उन्होंने भगवान को पा लिया। तेरा किया जातो नाही मैनो जो की तोई, मैं निर्गुणियारे को गुरु नाही आपे तरस पे हुई। गुरु नानक साहब जी का 3 सिद्धांत जो बहुत ही उन्होंने 3 सिद्धांत इस संसार को दिया। कीर्त करनी, भाव अपने मेहनत से कमाना। दूसरा भगवान का नाम जपना, नाम जपो। तीसरा बन के चलना। बन के चलना मतलब हमारे पास एक रोटी है, हमारे घर में कोई आ गया उसको आधा आधा करके खाना। गुरु साहब जी का ये 3 सिद्धांत बहुत ही इस संसार को दिया है। कहते हैं को पहयो मुंडिया सन्यासी जोगी पहयो, को ब्रह्मचारी को जति अनिमान हो। कहते हैं जिन्होंने प्रेम से उस परमात्मा वाहिगुरु को पा लिया है वो इस संसार भवसागर से पार उतर गया है। मैं इसी शब्द से कह के मैं यहाँ पर आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, बेनती प्रवान करना। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया समग्र सिख सांप्रदायिक धर्म की ओर से भाई गोविंद सिंह जी का। अभी आप बैठ जाना तो गुरु जी की ओर से उसको भी सौगात दी जाएगी। आप सामने जाइए, वो सौगात मिलेगी आपको। जाइए सामने जाइए। ये सौगात हमारे गुरु जी की ओर से प्यारी प्यारी बहनें लाई है और उन्होंने बोला कि जब हमारे लंदन से गुरु जी आए तो हम हमारे घर से अल्लाह के घर से ये लाएंगे। तो ये सारी गिफ्ट जो है हमारे सब मेहमानों को गुरु जी की ओर से दी जा रही है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं सनातन धर्म के जो स्वामी जी महाराज पधारे हैं उसको इनवाइट करूंगा कि आप यहाँ आके आपकी बात रखिए। और ये गुरु जी की ये भावना है कि लंदन से जो गुरुजी आए हैं हम सब मिल के पूरे संसार में साथ साथ काम करेंगे। तो ये हमारे गुरुजी को हम बुला रहे हैं। मैं आध्यात्म का एक धार्मिक गुरु हूँ। मेरा जब साउंड जब मैं देता हूँ संसार में सभी लोगों में एक साथ गुंजायमान होती है और इसलिए मैं सारा समस्त विश्व ब्रह्मांड के आत्मीय जगत का आत्मा और पृथ्वी लोक में रहने संपूर्ण मानव को एक साथ संबोधित करता हूँ। सभी गुरु लोग, इस ब्रह्मांड समस्त ब्रह्मांड में रहने गुरु लोग और संपूर्ण पृथ्वीवासी इस सभा में उपस्थित संपूर्ण मेरा प्यारा जन लोग, आप लोग को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड को रचना करने वाले उस परमात्मा जिसको जय बोलिए, और वो परमात्मा सच्चिदानंद है, उनका संतान आप लोग सभी हैं। और जब आप लोग आत्मा को पूजना चाहते, समझना चाहते हैं, ज्योति को समझना चाहते हैं, ज्योति में आपका दिल लगाना चाहते हैं और आप लोग किसी समय परमात्मा से एकाकार होकर ब्रह्मा में लीन होकर ब्रह्मांड में आप जहाँ से उत्पन्न होकर अनेक होकर आ गए, उसी तरह हम जब ब्रह्मांड में परम ब्रह्मांड अधिपति दादा गुरुदेव स्वामी सच्चिदानंद महाराज के नारायण रूप हैं, हम वहाँ से जब आए पृथ्वी में, फिर हम पृथ्वी से सतलोक में एकाकार हो गए, एक हो गए और फिर ध्यान तक
फिर भी एक ही आदमी बनकर हम खड़े हैं, जो परम परमानंद अधिपति गुरु लोग हैं, जो आपका सभी का परम अधिपति, सबका एक विधाता, सबके एक अभिभावक। मैं गुरुदेव स्वामी छवि महाराज परम ब्रह्मांड अधिपति, जो सार समस्त ब्रह्मांड को अभिभावक एक हूँ, तो आप लोग सभी मेरा संतति है। आप जिस धर्म मानता हूँ बोलते हो, फिर भी आप लोग सभी एक ही हो। मेरे लिए आप लोग भिन्नता नहीं है। आप लोग क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम हूँ, हिंदू हूँ, सिख हूँ, ये सभी धर्म में आप लोग अलग अलग समझ रहे हैं, लेकिन जब धर्म कोई भी नहीं था तब तक आपका पुरखा आप लोग सभी एक विधाता के संतान थे, इसलिए आप भिन्न नहीं है। अभी क्रिश्चियन धर्म जीसस क्राइस्ट गॉड के स्तर में आप लोग भाई के समान, आपका माता पिता का भी गुरु है, गुरु भाई के से भी ऊपर होते, इसलिए ईसाई लोग जीसस क्राइस्ट को मानते हैं ना, तो फिर भी जीसस क्राइस्ट स्वर्ग में देवता के राजा है, देवता के महाराजा है। देवता के राजा को आप लोग अपना गुरु मानकर चल रहे क्रिश्चियन भाई लोग, तो देवता के गुरु मानने के हिसाब से भी आप लोग जीसस का पिता ईश्वर है, जो राम है, जो कृष्णा है, जो अल्लाह है, वही जीसस क्राइस्ट का पिता है। अगर क्रिश्चियन का पिता जो जीसस क्राइस्ट का पिता, हिंदू के राम, अल्लाह सभी एक ही है, सभी एक ही होंगे। जीसस क्राइस्ट से हाई लेवल में देवराज इंद्र है, तो देवराज इंद्र से भी उच्च स्तर में बहुत सारे भगवान के दर्जा के साधु संत महात्मा, जो ईश्वर ब्रह्मा विष्णु शिव तो ईश्वर है, वही ईश्वर का संतति के स्तर में माता का स्वामी लोग है साधु महात्मा में, और साधु महात्मा में ईश्वर के संतान का हिसाब से 108 श्री 1000 श्री बहुत सारे गुरु लोग हैं, और जैन गुरुदेव को जितना है वो भी भगवान के दर्जा में है, और गुरु नानक बहुत सारे गुरुदेव ईश्वर के दर्जा में है, और सभी धर्मों ने अल्लाह को मानना, ईश्वर को मानना, ईश्वर सभी को एक मानते हो आप लोग। वही ईश्वर से हाई लेवल में ईश्वर जगत गुरु है, जगत गुरु का गुरु सदगुरु होते हैं, जो परम तत्व महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती के दर्जा का महादेव होते हैं। वो इंसान से लेकर महादेव, आत्मा महादेव का विधाता और इंसान के विधाता, त्रिदेव का विधाता, प्राण महाशक्ति है। महाशक्ति के भी गुरु लोग होते हैं, वो परब्रह्म परमात्मा है, उनसे भी गुरु परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म से भी उच्च स्तर में जो ब्रह्मांड अधिपति है। आप लोग को ये सारा ब्रह्मांड में जो भी धर्म ग्रंथ चाहिए, जो भी ज्ञान को आवश्यकता होगी, आप लोग को इच्छा अनुसार धर्म ग्रंथ निर्माण करना चाहेंगे तो सर्व धर्म सभा में सभी लोगों ने आप लोग का महान विचार, आपका इच्छा आकांक्षा जिस तरह से आत्मीय जगत संसार में नियंत्रित हो भन्ने उद्देश्य का उद्देश्य लेकर आप लोग जो ग्रंथ बनाना चाहेंगे तो उसमें आवश्यक होगी तो वो हम लागू कर देंगे। और आप लोग को इतना हम प्रेम करते हैं सभी जगत में। अगर इंसान तो बुढ़े होने से
अपना शरीर बदल कर दिव्य लोक में जाना चाहते हैं। सब लोग वही फिर भी संसार में नए आते हैं, उनको ज्ञान देना पड़ती है, उनको अनुशासन धर्म के हिसाब से आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन यापन करने के लिए और दिव्य जीवन सांसारिक जीवन में खुद असल सतपुरुष युक्त बनकर चल आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होता है, वो गुरु लोग देते रहेंगे। हम लोग आप लोग भविष्य में सभी धर्मावलंबी एकजुट होकर एक सभी नए पीढ़ी को कोई ग्रंथ निर्माण करें और उस ग्रंथ को हम मानव हित के लिए देना चाहते हैं। वो बहुत बढ़िया होगी, आप लोग दे सकते हैं। आप लोग हमेशा ये जानिएगा कि पहला धर्म विभाजन होने से पहला आप लोग विधाता की संतान हैं। हम वही गुरु हैं, वही विधाता हैं जो आप लोग अभी आत्मा ज्योति मिलाना चाहते हैं। हम वही एक है जो हमसे मिलना है हम लोग, क्योंकि आप जहाँ मिलना चाहते हैं ना ईश्वर में, वहाँ हम मिल चुके हैं। उदाहरण है जो हम परम सत्ता में हैं, आप लोग का इच्छा आकांक्षा पूरा कर पाएंगे और साथ देंगे हमेशा। धन्यवाद। बहुत बहुत महाराज, आपने बहुत बहुत अच्छी बात रखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ बहुत बड़ा बुद्ध विहार है, वहाँ से आए हुए बंते जी रवि दमादी बोल रहे हैं। थोड़ा अपने विचार बुद्ध धर्म का रखेंगे, समय की मर्यादा रखनी। के बाद गुरु जी बहन जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर से आई है, थोड़ी स्पिरिचुअल ऐसा वातावरण खड़ा करेंगे, फिर आपकी तकरीर अच्छी तरह से कर पाएंगे। थोड़ा वातावरण बनाएगी बहन, दूसरा प्रवचन नहीं करेगी, कमेंट्री कुछ देंगे। थोड़ा समय की मर्यादा ध्यान में रखना है महाराज। पूरे दिन से जो हो सके बोलो। यहाँ उपस्थित हमारा गुरु, सब धर्म का गुरु उपस्थित मान भाव जीवन, आज पहले हिंदी तो मेरा अच्छा नहीं है, मेरा हिंदी बोलने बहुत कमजोर है। मैं कुछ बोला कर मैं यहाँ से विदा लूँगा। मैं बौद्ध धर्म के लिए ही काठमांडू सम्राट अशोक के बनाया रहे चारुमती बिहार में रहते हो। ये पशुपति सामने है। आज बहुत खुशी है, सब धर्म का गुरु यहाँ आसीन है, विराजमान है। संसार शांति के लिए हम मानव सेवा के लिए ये धरती में हम सब आ रहे हैं। भगवान बुद्ध ने आप दरबार छोड़कर मानव सेवा के लिए सबका मालिक भी सेवक भी भगवान बुद्ध
हो गए। धर्म हम बहुत चर्चा कर रहे हैं धर्म के लिए। धर्म क्या है? हम सब धर्म मानते हैं। धर्म धारण करते हैं, नीति नियम अनुशासन है। अनुशासन धर्म में नहीं है तो मानव दान। संसार में दिख रहे हैं हर देश में कोई समस्याग्रस्त है। अमेरिका, रूसिया, चीन, यूरोप हथियार बनाने के लिए कंपटीशन है। ये हथियार किसके लिए? पशु पंछी नहीं है, पशु पंछी के लिए नहीं है, मानव के लिए। मानव खत्म करने के लिए हथियार बना रहा है। इसलिए हमें धर्म संसार के लिए, मानव के शांति के लिए है। सब धर्म का अपना अपना धर्म वो अच्छा है। किसी का धर्म बुरा नहीं है, मगर हम सब धर्म के लिए हम सब परमात्मा क्या है ये बुझने के लिए बहुत कोशिश है। आपका अंदर भीतर है। और ये परमात्मा की खोज के लिए हम मानव ये धरती के लिए, ये संसार में सब मानव की सेवा के लिए ये परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, करने के लिए नहीं है। हम अफ्रीका में देश में कितना भूख में मर रहा है, और एशियन कंट्री में भी हम कम व्यापार करता है। आप लोग सब व्यापार करता है, बिजनेस करता है। एक पैसा आप जमा कर लो, हम मानव सेवा के लिए सेवा करो, एक धर्म है। भेदभाव नहीं है इसमें। भगवान ने कहा है न चर्चा वसनो होती न होती ब्राह्मणो, कम मनो कुशलो होती कम मनो होती। हम सब महापंडित हो, गुरु हो, आप एजुकेट हो, आप गुरु हो सकता है, पंडित हो सकता है, मगर यही आपका अंदर बुरा बैड हो तो आप शैतान होता है, राक्षस होता है। इसलिए ये धर्म अच्छा के लिए, सबके धर्म भगवान बुद्ध ने कहा कार्य थी धर्म सबने धारण कर सकता है, धारण करना पड़ेगा। धारण नहीं करता तो हम सब पशु पंछी राक्षस शैतान हो सकते हैं। इसलिए ये धर्म हम मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है,
क्रिश्चियन धर्म, ब्रह्म कुमारी है, सब धर्म, हम सब धर्म मिलाकर के हाथ मिलाकर संसार में शांति के लिए हम आगे बढ़े। गुरु के लीडरशिप अब आगे हम सब ये अनुयायी हम नहीं चाहिए, हम किसी का भी बैर करना नहीं है, सबका अच्छा के लिए हमें आगे चलो। प्यार के लिए आशीर्वाद दी है। मैं भगवान बुद्ध का मंत्र उच्चार करके मैं यहाँ से विदा करती हूँ। सभ्भीतियो विवाध्यन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सर्वधर्मानुभावेन सर्वसंघानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। सबके लिए धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया में एक दो फोटो देनी है गुरुजी, फिर आप लोग ये लोग चले जाएंगे, तो आपकी इजाजत हो तो एक दो फोटो ले लेते हैं। पहले इनको बुला लें। ये फिर बैठेंगे, जाना है आप? बैठेंगे तो एक बैठे फोटो ले लेंगे ना, प्रेस में देना है बैठे बैठे। कुछ लोग पीछे जो बैठे वो खड़े रह जाइए अपनी जगह पे, पीछे जो बैठे वो खड़े हो जाइए, आगे जो बैठे वो बैठे रहिए। ये मीडिया में देना है, इसलिए फोटो, ग्रुप फोटो। कुछ लोग चले गए ना, फिर ये भी चले जाएंगे। ये रूहानी गुलाब अपना दिखा जाएगा। खड़े हो जाइए, फोटो एक दो ले लीजिए। जो अल्ताफ भाई जी ठीक है, धन्यवाद। अभी आप लोगों को जाना है, गुरु जी के हाथ से प्यार से स्वागत मिलेगी। यहाँ आप लोगों को यहाँ से जाइए, आगे यहाँ से आगे जाइए। प्यारी प्यारी बहनें गुरु जी के लिए सौगात देंगे। गुरु जी को बोले कि गुरु जी के हाथ से देना है। ये गुरु जी की ओर से सौगात दी जा रही है। समग्र बुद्ध समाज, सब विहारों को ये सौगात मिल रही है। और हमारे बंते जी यहाँ अपने बीच से विदाई ले रहे हैं। ये बुद्ध विहार का हेड ऑफिस है यहाँ नेपाल में, वहाँ से बंते जी आए हुए हैं। उसका बहुत बहुत गुरु जी की ओर से, हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे गुरु जी बहुत अच्छी तकरीर करेंगे, लेकिन उससे पहले बहनें, हमारी प्यारी प्यारी बहनें आई है, वो थोड़ा 5 मिनट में क्रिएट करेंगे, कमेंट्री देंगे। ये हमारी कुसुम बहन जी है, वो अपने वातावरण क्रिएट करेगी, कमेंट्री देंगे। फिर हमारे गुरु जी को हम सुनेंगे। ओम शांति। श्री श्री 1008 गौर साई सरकार जी, स्वामी विश्वानंद जी एवं मंच में आसीन सर्वधर्मों का गुरुजी एवं धर्म प्रेमी, प्रभु प्रेमी, संपूर्ण माताएं, बहनें,
भाई, आज सुखमय संसार के लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। उस सुखमय संसार के लिए हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो शैतान है, उसको समाप्त करना है। उसके लिए हमें राजयोग साधना एक बहुत सहायक सिद्ध है। इस साधना में राजयोग अर्थात हम आत्मा राजा होकर इस कर्म इंद्रियों पर राज करना अर्थात इंद्रियों पर शासन करना, इसी को ही राजयोग कहा जाता है। राजयोग अर्थात मन का शुद्धिकरण, मन को स्वच्छ बनाना, पवित्र बनाना, ये जीवन जीने का तरीका है जिससे हम स्वयं सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इससे स्वास्थ्य भी रहेगा, हमारा संबंध भी ठीक रहेगा और वातावरण विश्व भी सुखमय बन जाता है। राजयोग ये स्वयं हम अपना सत्य स्वरूप में टिककर उस परम सत्ता परमात्मा से संबंध जोड़ना, योग का अर्थ ही है जोड़। इसीलिए हम सब जब उस परमात्मा पिता के साथ संबंध जोड़ लेते हैं तब हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद, शक्ति, सर्व गुण प्राप्त होता है और हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं वो समाप्त हो जाता है और अंतर्निहित गुण शक्तियां उजागर हो जाता है। तो इसके लिए हमें अभ्यास निरंतर करना होगा। तो थोड़ी देर के लिए हम ये अभ्यास यहाँ करना चाहूँगी। तो इसके लिए आप सबसे नम्र अनुरोध है, सब हल्के होकर अपने कमर को सीधे रखकर चारों तरफ से अपने बुद्धि को हटाकर स्वयं अपने आप को देखें। हम कौन हैं? इसके लिए मैं जैसे जैसे शब्द उच्चारण करती जाती हूँ उसी अनुसार आप सभी चिंतन करके उसी अनुभव में रहने के लिए अनुरोध करती हूँ। अपने आप को देखें। मैं इस शरीर को चलाने वाली, संकल्प को रचने वाली, भावनाओं को महसूस करने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। इस पंच तत्वों से बना हुआ इस शरीर के मस्तक में भृकुटी के बीच में विराजमान अति सूक्ष्म में ज्योति स्वरूप हूँ। मैं प्रकाश का पुंज, शरीर से भिन्न, इस शरीर का मालिक आत्मा हूँ। दिव्य प्रकाश का पुंज आँखों द्वारा देखने वाला, कानों द्वारा
सुनने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मेरा मूल स्वभाव पवित्र है, शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझ आत्मा द्वारा चारों तरफ शांति का तरंगे फैल रही है। मैं शांति सागर शिव पिता के संतान हूँ। सागर महाज्योति परमात्मा पिता से मुझ आत्मा में शांति का तरंगे रही है। मुझ आत्मा द्वारा चारों तरफ विश्व में शांति का तरंगे, शांति का वाइब्रेशन फैल रही है। जैसे सूर्य से सूर्य का किरणें चारों तरफ रोशनी देते हैं, इसी तरह मुझ आत्मा द्वारा शांति का तरंग चारों ओर फैल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम बेन जी, आपने हम सबको शांति के महासागर तक पहुंचा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम बहुत बड़े दिल से जिसकी इंतजार कर रहे हैं, हमारे प्यारे प्यारे जिसके दिलों में प्रेम का महासागर भरा है, वैसे हमारे गुरुजी यूनुस अलगोहर जी से हम सुनेंगे। हम उसकी प्रेम भरी निगाहों से भी नवाजेंगे। बाद में हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी यूनुस अलगोहर जी। जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं उनको मिलकर बहुत खुशी हुई है। और ये कोशिश कि तमाम धर्म के लोग, तमाम धर्म के लीडर्स मिलकर अमन और शांति का मैसेज को दे रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी कोशिश है और कामयाब करना भी हमारे हाथों में है। हमारा जो मैसेज है, मिशन है, वो तमाम इंसानों को इकट्ठा करने का है कि तमाम इंसान पहले अरब तक पहुंच जाएं, फिर उसके बाद खुद इकट्ठे भी हो जाएंगे।
जितने भी धर्म इस दुनिया में हैं, सबकी तालीम, सबकी शिक्षा जो है अच्छी है, लेकिन बात वही है कि दिल में अगर उतर जाए फिर उसका असर होता है। अगर वो दिल में ना उतरे तो फिर वो एक रस्म रह जाती है। कोई भी दीन, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, लेकिन फिर भी हम मुख्तलिफ आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं, लड़ते हैं। इसकी वजह यही है कि हमारे दिलों में शैतान है। उस शैतान को निकालना जरूरी है। जाहिर हम एक दूसरे को अपना भाई कह भी दें, लेकिन वो अंदर जो शैतान उसको ना निकाले तो फिर वो बात बनती नहीं। ज़बानी कलाम में तो औरत मर्द को आई लव यू बोलती है और मर्द औरत को आई लव यू बोलता है। लव मैरिज हो जाती है, फिर भी डिवोर्स हो जाता है। अगर वो लव सच्चा था तो फिर डिवोर्स क्यों हुई? सही बात। ये प्रेम, मोहब्बत, लव, ये सब ज़बानी कलामी नहीं होता है। इसके लिए दिल को पाक करना पड़ता है। कोई भी दीन हो आपका, कोई भी धर्म हो, परमात्मा को लाना पड़ेगा, रब को लाना पड़ेगा दिल में। जब तक वो दिल में आएगा नहीं तो हम इंसान नहीं बनेंगे, जानवर बनेंगे, एक दूसरे को नफरत करेंगे। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया में यूनिफिकेशन हो, तमाम इंसान एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करे, सुख शांति हो, नफरत खत्म हो जाए। सब यही चाहते हैं, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उस पर डिपेंड करेगा कि हमारी ये एफर्ट्स कामयाब होती हैं या नहीं होती है। ज़बानी तौर पर जैसा मैंने आपको कहा, हम एक दूसरे के भाई हैं। इससे ज़्यादा इंटेंसिटी वाला जो रिश्ता है, तो जो औरत और मर्द एक दूसरे को आई लव यू बोल के भी डिवोर्स हो जाती है, तो फिर ज़बानी तौर पर एक दूसरे को भाई बनाने से गारंटी नहीं है कि हम सब मिल जाएंगे। एक बड़ी खास बात इस दुनिया में जो भी शब्द है उसका एक नंबर होता है, जिसको उर्दू में कहते हैं इल्मुल आदाद। आपको भी मालूम होगा। और अंग्रेजी में उसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी। उसका नंबर होता है। जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर है 786, इसी तरह लफ्ज अल्लाह का नंबर है 66। लफ्ज अल्लाह का 66। इसी तरह गॉड का अपना कोई अदद होगा। भगवान जो लफ्ज है उसका कोई अपना अदद होगा। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये बड़ी खास है, ये आपकी तवज्जो चाहते हैं। अगर सारी दुनिया के इंसान उनके मुनव्वर हो जाएं, लेकिन इसका दिल या रहमान के नूर से मुनव्वर है, इसका दिल या कुद्दूस के नूर से मुनव्वर है, इसका दिल जो है या वदूद के नूर से मुनव्वर है, इसका दिल इसमें ज़ात अल्लाह से मुनव्वर है। मुनव्वर सबके दिल हों मुख्तलिफ नामों से, उसके बावजूद एक नहीं हो सकते। ज़बानों से ये नाम लेने से कैसे एक होंगे?
क्या बात, सब ज़ाकिर कल्बी हो, लेकिन ये ज़ाकिर कल्बी या रहमानों के इसम से हो, ये या वजूदों के इसम से, ये गॉड के, ये राम के, ये अल्लाह के, सबके दिल मुनव्वर हो जाए, फिर भी वो एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसके दिल में या रहमानों का नाम है ना, उसके अदद का इसके ऊपर असर होगा। इसके दिल में या वजूदों का नाम हुआ, इसके ऊपर उसके अदद का असर होगा। इसके दिल में राम हुआ, उसके अदद का इस पे असर होगा। इनके दिल में अल्लाह हुआ, इनके ऊपर उसके अदद का असर होगा ना। वो तो फिर डिफरेंट क्लासेस हो जाएंगी। यूनिफिकेशन के लिए और तमाम इंसानों को एक करने के लिए जरूरी है किसी एक ही शब्द का हर दिल में बात समझ में आई है ना? क्योंकि हर नाम का, हर शब्द का एक अदद नंबर होता है। आपके भी नाम का अदद होगा, आपके भी नाम का अदद होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो सबका नाम अल्लाह के नाम से ही जुड़े, भले ही वो नाम वाहिगुरु हो, भले ही वो नाम रारा हो, लेकिन यूनिफिकेशन के लिए जरूरी है कि अगर वाहिगुरु यहां गया है तो सब में वाहिगुरु जाए, फिर वो यूनाइट होंगे। अब कुरान में आया बहुत सारे नाम हैं और सारे सही हैं, सारे अच्छे हैं, जिनको इस्माइल हुसना कहा गया। सारे अल्लाह के नाम बाबरकत हैं, लेकिन इसके दिल में अल्लाह का ये नाम, उसके दिल में वो नाम, उसके दिल में वो नाम, सबके ऊपर हर नाम का, उसकी वजह से वो एक नहीं हो सकते। दुनिया को एक करने के लिए जरूरी है कि सबके दिलों में एक ही नाम जाए, फिर एक ही नाम का असर होगा, उससे वो यूनाइट होंगे। इसलिए हम लोगों को एक ही नाम का शब्द, नाम, जिक्र देते हैं ताकि लोगों के दिलों में नूर पैदा हो और एक ही अदद के असर में सब आ जाए। हमारा मकसद कोई दीन और धर्म नहीं है। आपका कोई भी दीन, कोई भी धर्म हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें इस बात से मतलब है आप रब को चाहते हैं, रब तक पहुंचने का तरीका हमारे पास है, और वो रब तक पहुंचने का जो रास्ता है वो यहां से शुरू होता है, दिल से। वो रास्ता दिल से शुरू होता है, और दिल में रब का नाम चला जाता है तो नूर बनता रहता है। इसके दिल में भी वही नाम चला गया, इसमें भी वही नूर बनेगा, उसमें भी वही नाम, उसमें भी वही नाम। देख रहे हैं ना कि हम मुस्लिम बैकग्राउंड से, हमारे जसवीर भाई सिख बैकग्राउंड से, राजेंद्र भाई हिंदू बैकग्राउंड से, लेकिन सब में एक सब भाई भाई हो गए। Every word has a number, and when that name of God enters your heart, you come under the effect of that particular number. जब एक ही नाम होगा ना, बिल्कुल हमारे अंदर वो बुराई दूर नहीं हो रही है, हमारे अंदर वो बुराई दूर नहीं हो रही है, और हम इंसान बन के भी इंसानों जैसी हरकतें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो इंसान है ना वो सोया हुआ है। अब जैसे हमारे जो स्वामी जी बैठे थे वो सो रहे थे, तो अब उनसे पूछा जाए क्या गुफ्तगू हुई, नहीं बता सकते ना। अगर आप यहाँ बैठ के सो रहे हैं और यहाँ गुफ्तगू हो रही है, बाद में आपसे पूछा जाए बताओ क्या बात हुई, तो आपको क्या पता।
नहीं बता रहे? अभी तुम्हारे अंदर आत्मा सो रही है, तुम नमाज में लगे हुए, आत्मा को पता ही नहीं। ये जो हमारी शक्ल सूरत है, ये इंसान नहीं है, ये शक्ल सूरत है सिर्फ, ये इंसान नहीं है। इंसान हमारे अंदर आत्मा है, और उस आत्मा का ही संबंध होगा परमात्मा से, उसी का संयोग जो है परमात्मा से होगा, इस शरीर का नहीं हो सकता। आत्मा का ही संयोग होता है परमात्मा से, शरीर का नहीं हो सकता। ये तो यही माँ के पेट में बना है और यही कब्र के पेट में चला जाएगा। ऊपर की चीज जाएगी तो आत्मा है। हमने वाहेगुरु कराना है आत्मा को, हमने राम कराना है आत्मा को, अल्लाह अल्लाह कराना है आत्मा। जब वो राम वाहेगुरु अल्लाह अल्लाह में लगेगी, फिर वो जागृत होगी, बेदार होगी। फिर जिसकी वो बेदार हो जाएगी, वो इंसानों जैसी हरकतें करेगा। अभी हम कहते हैं देखो यार दुनिया में क्या हो गया है, ये इंसान होते हैं जानवरों जैसी हरकतें करते हैं। इसलिए कर रहे हैं कि उनके अंदर जो इंसान, उसकी जो आत्मा है वो सो रही है। ये शरीर जो है ये इंसान नहीं है, ये कंटेनर है इंसान का, ये जो है बैग है, इंसान अंदर है। जब इधर का इंसान भी जाग गया, उधर का इंसान भी जाग गया, तो फिर यूनिटी आ जाएगी। अभी हम लगते तो इंसान हैं, लेकिन जो इंसानों वाली बात है वो हमारे अंदर है नहीं। अगर आप सोसाइटी पे नजर डालें दुनिया में, कोई भी देश हो, छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार होके उनको मार के फेंक देते हैं। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आपके बाल खड़े हो जाए सुन के कि ऐसे ऐसे जो है भी हथियारे इस दुनिया में मौजूद, ऐसी ऐसी हत्याएं करने वाले, ऐसे ऐसा अन्याय करने वाले लोग भी मौजूद। क्या उनका इंसान बेदार है? जब तक उस सोए हुए इंसान को हमने जगाया नहीं, तो उस वक्त तक हम जानवरों जैसे करेंगे। हम वो जानवर हैं जो बोल सकते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं। अंग्रेज इसको कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जो जानवर होता है, आपने कभी सुना है कि कुत्तों की पार्टी हो रही है? कुत्ता किसको कहता है? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है। अगर किसी अक्ल आप कुत्तों को दे दें, अगर अल्लाह ताला कुत्तों को, बैल बकरी भैंस को थोड़ी सी अकल दे दे, तो कल से बूट पहन के यहाँ बैठे होंगे। वो भी कहेंगे चलो किसी किसको मिल जाए क्योंकि उनके पास अकल नहीं है। और हम जो इंसान हैं, ने अकल दी है, तो ये हमें अपना शऊर तो आ गया है, लेकिन एक अकल वो होती है जिससे रब का शऊर आता है, वो हमारी रूह में है। उसी रूह को बेदार करने के बाद हमारा जो कनेक्शन है, ये बातें तो मैं 6 दिन से कर रहा हूं ना। आप में से किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। जो भी हमारे दोस्त हैं, आप चाहें हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, आप तो कुछ पूछना चाहें तो पूछिए, बड़े जोर और शोर के साथ पूछिए। हमारे इमाम साहब कुछ अर्से पहले कह रहे थे, कुछ देर पहले, इस्लाम बहुत खूबसूरत रिलीजन है। सारे ही रिलीजन खूबसूरत है, अल्लाह बदसूरत रिलीजन क्यों भेजेगा? सारे ही रिलीजन खूबसूरत है, बस ये मुख्तलिफ रास्ते हैं।
रब तक जाने के लिए। कोई इस रास्ते से रब को जा रहा है, कोई उस रास्ते से रब को जा रहा है, मुख्तलिफ रास्ते हैं। कामयाब वो है जो उस रास्ते से रब तक पहुंच गया। आप हिंदू के रास्ते से रब तक पहुंच गए, कामयाब हो। आप सिख मत के जरिए रब को पा लिया आपने, तो आप कामयाब। आप मुसलमान हैं, आपने इस्लाम के जरिए रब तक रसाई हासिल कर ली, तो आप कामयाब। और अगर मुसलमान इस्लाम पर अमल पैरा होने के बावजूद रब को नहीं हासिल कर सका, तो उसका वक्त जाया हो गया। हिंदू मत के जरिए भगवान तक नहीं पहुंचा, क्या फायदा हुआ? ये जो दीन है, रिलीजन्स हैं, धर्म है, इनको सिर्फ अपनाना नहीं कि लेबल लगा दिया मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं मुसलमान हूं। इनके वसीले को इस्तेमाल करके रब तक पहुंचना। अगर पहुंच गए तो फिर इस दीन का फायदा होगा, अगर नहीं तो क्या फायदा होगा? अगर नहीं पहुंचे, ना हिंदुइज्म के जरिए रब तक पहुंचा, ना सिख मत के जरिए रब तक पहुंचा, ना मुस्लिम, तो सब एक ही जैसा है ना। फर्क हुआ फिर तो सिख है, हिंदू है, मुसलमान है। फर्क तो तब पड़ता है जब तू इनसे पहुंच जाता रहता है। तो रब जो है सिर्फ मान लेने में नहीं है कि मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं। दीन को अपने अंदर उतारना पड़ता है। कुरान ने भी यही कहा है, पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। जो पूरा दाखिल हो गया वो रब को पा गया, जो आधा दाखिल हुआ वो कोई सुन्नी हो गया, कोई शिया हो गया, कोई वहाबी हो गया, कोई बरेलवी हो गया, आपस में हो गया, रब तक तो कोई पहुंचा ही नहीं। आप पूछिए, और यहाँ बैठेंगे तो एक दूसरे को देख। सबसे पहले मुझे कुछ सवाल करने का मौका दिया, बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह आपकी सबके लिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा बड़ी अच्छी बात है, और यही बात होनी चाहिए, मतलब बीच में कि सबको जोड़ने वाली बात होनी चाहिए, तोड़ने वाली बात नहीं होनी चाहिए। और ऐसी बात जो सबके दिलों को जोड़ दे, और ऐसी कोई बात जो सबको दिलों को एक जगह पे ला करके खड़े कर दे, बड़ी अच्छी बात है। तो सवाल तो मुझे कुछ नहीं करना था, लेकिन यह है कि आपने जो ये कहा कि मैंने कई वजूहात थी, लेकिन मैं क्योंकि वक्त नहीं मिला जिसकी वजह से मैं बताया था। असल मेरी टॉपिक ये थी, मौजू ये था, जैसा कि आपने बार बार जिक्र किया और सभी लोगों ने, और अभी अभी आपने भी कहा कि ये जो जिस्म है हमारा, ये कंटेनर है। यकीनन जिस्म के दो हिस्से हैं, आज भी साइंस भी मानती है। जिसको रूहानी कहते हैं, और असल ताल्लुक जो हमारा और हमारे खालिक से होता है, रूह से होता है, जिस्म से नहीं होता। और इस रूह का ताल्लुक मजबूत से हो खालिक से, उसके लिए कुछ दिया करने के लिए, जैसा कि आपने अभी एक जिक्र, जिसको हम कह सकते हैं कि आप माला जब भी जिक्र कीजिए, इससे आपका दिल रोशन होगा, एक जिक्र। और उसके अलावा और भी कुछ काम है। एक बात मैं बोल गया था उस बीच में, हमें और आपको हमारे अल्लाह ने जो पैदा किया है उसका एक मकसद है। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि उसकी मिसाल कुरान करीम में भी है कि अल्लाह चाहता है कि जिस बंदे को मैंने ज़मीन पर भेजा है वो बंदा कामयाब होकर के मेरे पास आए, नाकाम होकर के नहीं आए। कामयाबी का रास्ता क्या है? तो कामयाबी का रास्ता बताया है कुरान करीम में। कामयाबी का क्या रास्ता है? कामयाबी का रास्ता एक बहुत मुख्तसर लफ्ज़ में मैं बोला था कि कामयाबी का रास्ता यह है कि इंसान
खुद भी अमन महसूस और दूसरों को भी अपनी ज़ात से अमन का पैगाम दे, और उसके अमन का पैगाम देगा, खुद भी अमन महसूस करेगा, तो उसकी एक जुल्म है उसको ख़त्म करनी पड़ेगी। और ये जुल्म कम व बेश हर इंसान, और वो ले दे के वही बात होती है कि वो जुल्म कहाँ से शुरू होती है, वो इंसान के दिल से शुरू होती है। अब दिल में बहुत सारी चीज़ें जुल्म की, मसलन गंदे ख्यालात, किसी के बारे में साजिश करना, खोरी कीमत करना, ये सारी चीज़ें होती है, और आप भी जानते हैं कि से पैदा होता है, और ये इसराफ इसी के ऊपर रोक लगाता है। और आप भी इस मान को कह रहे हैं, हम भी मानते हैं, सभी मानते हैं कि दिल जो है वो असल इंसान का जहाँ रूह होता है, और उसको पवित्र करना होता है, तब जा करके क्या नाम है, अल्लाह से हमारा ताल्लुक हो। बहरहाल ये बातें थी। सवाल ये है मेरा करना कि स्वामी नाम है, आपसे सवाल ये करना है कि मसलन हम और आप जिस दर्जे पे हैं धार्मिक रूप से, थोड़ी देर के लिए मान लें, हम आपको माने, आप हमें, कि हमारा रूह ऐसा पवित्र है कि हमारा और आपका कनेक्शन अल्लाह से है, अल्लाह से है, और हमारी और आपकी कोशिश भी ये है कि दूसरे लोगों का भी ऐसे ताल्लुक हो जाए जैसे कि हमारा और आपका है। तो सवाल ये मेरा ये करना है कि मतलब जिन लोगों का ताल्लुक नहीं है इस दर्जे का, जो हमारे और आपके का ताल्लुक है, तो फिर उन लोगों का क्या है? ये मेरा सवाल है, या आप पब्लिक को समझा दें और मुझे भी समझा दें। मेरे पास ये आपने इतना मुश्किल सवाल किया है। यौम अज़ल में अल्लाह ताला ने अमरे खून के जरिए जब अरवाह को बना लिया, सारी अरवाह को सामने अपने इकट्ठा रखा, और फिर फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, सबने कहा हाँ तुम्हारा रब है। उसके बाद कहा शाहिदना, हम शहादत देते। उसके बाद अल्लाह ताला ने दुनिया के मसनूनी लज्जात उन रूहों को दिखाए और कहा कि जिसको ये पसंद है वो ले ले। तो बहुत सारी अरवाह लज्जात दुनिया की तरफ लगी, तो वो हुक्म हुआ कि ये इनकी तकदीर में लिख दिया जाए। तो उनकी तकदीर में दुनिया के लज्जात लिख दिए गए। उसके बाद अल्लाह ने एक और नजारा दिखाया जो कि इताअत और बंदगी वाला था। उसमें अल्लाह ताला ने जन्नत के लज्जात दिखाए और कहा कि जिसको ये पसंद है वो ये ले ले। लड़की फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जो इन्होंने इंतखाब किया है इनको तकदीर में लिख दिया जाए। जिन्होंने दुनिया के लज्जात पसंद किए उनकी तकदीर में दुनिया लिख दिया गया। जिन्होंने जन्नत के लज्जात पसंद किए उनकी तकदीर में जन्नत लिख दी गई। कुछ रूहें ऐसी थी कि जो कभी दुनिया के लज्जात की तरफ देख रही थी और कभी जन्नत के लज्जात की तरफ देख रही थी और कोई फैसला न कर पाई। उनके लिए अल्लाह ने हुक्म किया कि इनकी तकदीर में मुअल्लक़ लिख दिया जाए, न दुनिया न जन्नत, उनकी तकदीर खाली। अब ये तीन किस्म की रूहें हो गई दुनिया में, ये तीन किस्म की रूहें आती हैं जिनकी तकदीर में दुनिया लिखी है। वो दुनिया में आके दुनिया के
वसूल में लग जाती हैं और दुनिया को हासिल करने के लिए हलाल और हराम की तमीज भी चल जाती है। बिजनेस ही उनका रिलीजन बन जाता है। ऐसे भी लोग हमने देखे कि जिन्होंने बिजनेस को अपनी जिंदगी का अव्वलीन मकसद बना लिया। ना अपने परिवार की कोई परवाह है, ना रब की कोई परवाह है। कहने को मुसलमान है, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई, ये वो दुनियादार है जिन्होंने आके दुनिया में दुनिया को ही हासिल करना है। दुनिया के हसूल के लिए बहुत से लोग कारोबार किया और बहुत से लोगों ने मंदिर और मस्जिद को भी कारोबार में लगा दिया दुनिया के हसूल के लिए। उनकी तकदीर में दुनिया लिखी है, उन्होंने दुनिया ही हासिल करनी है, कोई भी लिबादा और नहीं। कारोबारी लिबादा पहन लें, किसी मुल्ला का लिबास पहन लें या पंडित का पहन लें, कोई भी लिबास पहन लें, इन्हीं की वजह से फिर फितना भी हुआ दुनिया में। जिनकी तकदीर में जन्नत लिखा है उनको जन्नत हासिल करने के लिए फिर अल्लाह ताला ने ये मज़ाहिर बना दिए कि इनकी तालीमात पर अमल पैरा होके अपने आप को सुधार के अल्लाह की इताअत, उसके रसूल की इताअत और बंदगी इख्तियार करके वो जन्नत में आला मकाम हासिल कर लेते हैं। इसी तरह की रूहें वो हैं जिनकी तकदीर में कुछ भी नहीं लिखा, खाली। अगर वो शैतान के हत्थे चढ़ गई तो वो भी शैतान हो गई, और अगर वो किसी कामिल मुर्शिद के हाथों में आ गई तो वो रूहें भी पाक हो गई। तो जिन लोगों ने यौम अज़ल में रब की गवाही में ही कलमा पढ़ लिया था, वही रूहें दुनिया में आकर बेदार होती हैं, अल्लाह अल्लाह में लगती हैं। वही रूहें इन अभियान के जरिए रब को हासिल करती हैं। जिनकी तकदीर में दुनिया लिखा है वो किसी के बावजूद भी उनको रूह की बेदारी की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। ये मेरा जवाब। जी, इस जवाब पर मेरा सवाल ये है कि रूह की जो किस्में आपने बयान की 3 किस्में, एक हिदायत मिल सकती है, वो है कि हिदायत की जरूरत ही नहीं है, उसको जन्नत में चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, उसको भी हिदायत की जरूरत है, उसको भी हिदायत की जरूरत है। एक वो है जो जहन्नमी की तरफ जा रही है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? उनके लिए कुरान ने कहा ना, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अलैहि क़ुलूबिहिम। नहीं, उसकी दलील है ना। जी, दलील है, मैं मानता हूँ। दलील जो है, अल्लाह ने फरमाया इनको बताओ ही ना इनको डराओ, ना इनको तबलीग करो, क्योंकि ये कभी भी मोमिन नहीं बन सकते। इनके दिलों की जिंदगियों को अल्लाह ने खत्म कर दिया। सवाल ये है, क्या जिस अल्लाह ने, जिस परमात्मा ने मखलूक को बनाया, तो अगर कोई बंदा जहन्नम या नर्क में चला अपने बदअमाली की वजह से, किसी वजह से, तो क्या वो परमात्मा ऐसा है कि उसको वो अच्छा लगेगा? एक सवाल तो ये है। और इस पे दूसरा ये है कि एक बाप होता है जिसके दिल में बेटे के लिए बड़ी मोहब्बत और प्यार होती है। एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, और कोई भी बाप ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे को हल्का सा ठोकर लगे। ये बात हम और आप सभी धर्म के लोग मानते हैं। ये प्यार और मोहब्बत का पैदा करना दिल के अंदर अल्लाह का काम है। तो कुरान करीम की जो शुरुआत हुई है सबसे पहले,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम की वजाहत आप समझते होंगे। तो अर्रहमान के माने आते हैं उसकी रहमत और मोहब्बत फैली हुई है। रहीम के माने आते हैं फैली हुई के बाद भी वो मजबूत और ताम, मुकम्मल, नाकिस नहीं है, कम नहीं है। तो क्या जिस बाप के दिल में इतनी मोहब्बत और शफकत उस रब ने, उस अल्लाह ने भर दी है, तो क्या वो रब जो अपनी मोहब्बत और रहम का ये इकरार कर रहा है सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान करीम शुरू करने से पहले, तो क्या वो रब ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा अगर चला जाए जहन्नम में तो उसको अच्छा न लगे? ये कैसे मान सकते हैं कि एक आदमी ये है कि वो जहन्नम ही के लिए बना हुआ है, उसको हिदायत नहीं मिलेगी? ये मानने वाली बात कैसे आ सकती है? जबकि वो रब कह रहा है कि मैं तो रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ। और रहमत का तकाजा ये है कि एक बाप नहीं चाहता है कि मेरा बेटा हल्का सा ठोकर लगे, तो वो रहमान कैसे चाहेगा कि वो मेरा बंदा जिससे मैं इतनी प्यार मोहब्बत करता हूँ वो बंदा जहन्नम में चला जाए? इसकी वजाहत बात तो सही है कि एक बाप या एक माँ अगर उनका कोई बच्चा शरारती भी हो तो वो उसको सजा देना नहीं चाहिए। एक इंसान के तौर पर तो हमारे यही जज्बात है, लेकिन अल्लाह इंसान को नहीं कहना। सबसे पहले तो ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इंसानों और जिन्नात की अक्सरियत को जहन्नम के लिए बनाया। अब जब उन्होंने इंसानों की अक्सरियत को जहन्नम के लिए बनाया है तो फिर उन्होंने जहन्नम ही जाना। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये कुरान है। चलो मैं पढ़ के बताओ। जहन्नमा कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लेकिन एक इंसान में अगर कोई जब औलाद नाफरमान हो, ऐसा भी तो होता है ना कि माँ बाप उसको अपनी आग कर देते हैं नाफरमान। ऐसा नहीं है कि हर माँ अपने चोर बेटे को अपनी आगोश में ले लेगी। हर माँ नहीं करेगी ऐसा। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ और बाप को भी मार देते हैं। तो एक बहैसियत मुसलमान इंसान जो कुरान में आ गया उससे मुनहरिफ नहीं हो सकता। ये कुरान मजीद में है। ये भी है कि हिदायत का इख्तियार इंसान के पास नहीं है। जिसको अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत याफ्ता होता है, और जिसको अल्लाह हिदायत नहीं देता है वो हिदायत याफ्ता नहीं हो सकता। तो ये तो अल्लाह का फैसला है कि अल्लाह ने किसको हिदायत देनी है, किसको हिदायत नहीं देनी है। और रह गई बात अमाल के जरिए, अपने बुरे अमाल के जरिए कोई जहन्नम में जाएगा, ये बात गलत है। इस्लाम ये नहीं सिखाता। सहाबा किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या हम अपने अमाल की बख्शे जाएंगे? तो आपने फरमाया नहीं, तुम अपने अमाल की बुनियाद पर नहीं बख्शे जाओगे, बल्कि अल्लाह के फजल से बख्शे जाओगे। ठीक है ना? तो अमाल बुरे हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसने कभी कोई गुनाह न किया हो? अमाल तो सबके ही बुरे हैं। अल्लाह ताला की फिर रहमत के ऊपर भरोसा किया जाता है, फिर उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है कि वो माफ करे, उसकी मर्जी है कि वो माफ ना करे। यौम महशर में जब अमाल नामा हमारे हाथ में होगा तो डिसाइड इस बात पर नहीं होगा कि इसके अमाल कितने अच्छे हैं और बुरे हैं। उस दिन का जो ओनर है, मास्टर है, मालिक है, वो अल्लाह है। मालिक यौमिद्दीन। वो जिसको चाहे जन्नत में भेज दे, जिसको चाहे जहन्नम में भेज दे। उससे कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता, क्योंकि वो मालिक है।
हमने तो कुरान को पढ़ के यही समझा है। अब आप बता दीजिए आपकी अंडरस्टैंडिंग कुरान की क्या है? ये सबसे पहली बात तो मैं इस बात को ख़त्म कर देता हूँ, वरना सवाल जवाब का शुरुआत भी ज़्यादा होगा, मुझे नमाज भी पढ़नी है, टाइम असर का भी बाकी है। ये देखिए, मैं जो इस बात को वजाहत करना चाहता हूँ, इस भी है कुरान करीम की इन्होंने आयतें पढ़ी है, ये हम और साहब सब मानते हैं कि एक वक्त था कि कायनात नहीं थी। अल्लाह ने इस कायनात को बनाना चाहा तो हमारा इस्लाम ये कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले ज़मीन में पानी को पैदा फरमाया। पानी के बाद फिर उससे भाप उठा, वो आसमान की शक्ल इख्तियार कर गई, जो नीली शक्ल में हमें नज़र आती है। फिर अल्लाह अपनी इबादत के लिए, अपने बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपना एक घर जिसको हम अब्दुल्ला शरीफ के नाम से जानते हैं। आज भी दुनिया अगर रिसर्च करे, जोग्राफिया जो हजरात जानते हैं वो रिसर्च करें तो दुनिया के बीचों बीच वो खाना काबा है, उसके बारे में ये आता है कि वहाँ से एक मिट्टी पानी के अंदर नमूदार हुई और वो फैलती चली गई और फिर खुश्की का जो हिस्सा है वो हमें नज़र आता है, वो खुश्की का हिस्सा बन गया, उस पर इंसान आबाद हुए। हज़रत सलाम सबसे पहले इंसान है और इंसान ही नहीं, अल्लाह के नबी भी है, पैगम्बर भी है, और उन्हीं के ज़रिए से फिर उनके बाय पसरी से दादी हवा को पैदा किया। दोनों जन्नत में थे, दोनों का निकाह हुआ। उसके बाद एक गलती की वजह से, शजर ममनुआ खाने की वजह से फिर उनको ज़मीन पर भेजा गया और ये अल्लाह की मसलिहत थी। बहरहाल बयान लंबा हो जाएगा, तो मतलब ये कहना ये है कि जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब जिन्होंने हदीस पढ़ा था, मेरा मानना ये है और हदीस मेरे पास दलील है, इसकी प्रूफ है कि सारे के सारे इंसान के लिए अल्लाह ने सबसे पहला तो ये है कि उसके लिए नजात का रास्ता है, जन्नत जहन्नम का रास्ता नहीं। दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अल फित्रती फअबावाहु युहविदानी व युनस्सिरानी व युमज्जिसानी औ कमा क़ाल नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें यह है कि हर बंदा हिदायत पर पैदा होता है। हिदायत कौन सी? जन्नत वाली हिदायत। हर बंदा इस बात पर पैदा होता है, हर बंदा, हर इंसान, कि उसको हिदायत मिल सकती है और वो हिदायत और रास्ता मिल सकता है और वो रास्ता मिल सकता है जो उसको जन्नत में पहुंचा देती है। फिर को मतलब उस रास्ते पे क्यों नहीं जाते हैं जिससे जन्नत रास्ता मिले उसको, और जहन्नम में चला जाए, ऐसा क्यों होता है? बार बार हम सुन रहे हैं कि इंसान की बॉडी में असल रूह है और रूह का ताल्लुक दिल से है, तो हम इसको दिल बोलते हैं कि दिल के अंदर है, असल चीज़ दिल है और उसके बाद दिमाग का नंबर आता है। तो असल चीज़ इंसान के अंदर दिल है और दिल पर हुकूमत होती है। और इंसान की बॉडी में, आप सूफिया के कलाम में जाएंगे, आप सूफियत को ज़्यादा जानते हैं, सूफिया इसकी जो वजाहत करते हैं, ये दिल एक बादशाह है जिसके अंदर रूह है और वो बादशाह पूरे हमारे जिस्म के ऊपर हुकूमत करता है। और ये ऐसी हुकूमत करता है, आज के ज़माने में समझना है कि मसलन जैसे हम देखते हैं तो जिस तरह हम देखना चाहते हैं वो हुकूमत दिल कर रहा है कि इधर देखो, हम इधर हाथ हिला रहे तो दिल हुकूमत कर रहा है कि इधर देखो। इसको आज के ज़माने में समझिए, इतना तेज़ी के साथ ये हुकूमत कैसे कर रहा है। आप 50-100 किलोमीटर दूरी पर आप लाइन का कनेक्शन स्विच यहाँ दबाइए, लाइट वहाँ जलेगी। तो इसी तरह दिल की हुकूमत हो रही। बहरहाल ये कहना था कि हर बंदे को, क्योंकि अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी, वो नहीं चाहता कि कोई बंदा चला जाए जहन्नम के अंदर, जन्नत के अंदर चला जाए, उसके लिए हिदायत है। और दिल जो उसका बनाया है वो खास अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। कुरान इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि मैंने इंसान का जो दिल बनाया है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन यहाँ खास किया है, जहाँ जानते हैं आप कि मोमिनीन का दिल मैंने जन्नत के बदले में खरीद लिया है, या सब के सब उसका दिल खरीद लिया है। और दिल ये इंसान का घर, अल्लाह का घर है जिसमें हमारा रब रहता है, हमारा ईश्वर रहता है, ये अल्लाह का घर है। तो ये जन्नत के बदले में खरीद लिया है, तो गोया कि जहन्नम में तो जा ही नहीं सकता। फिर दूसरे लोग जहन्नम में क्यों चले जाते हैं, उसके लिए आगे कि अगर
इसमें बड़ा दखल होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो हम आप सब इस बात को मानते हैं, मासूम पैदा होता है। कैसा होता है? मासूम होता है कि नहीं होता? मासूम, कोई पाप, कोई गुनाह, कोई चोरी, कोई डकैती, कोई जुआ, कोई शराब, कुछ नहीं होता। वो बच्चा मासूम होता है। फिर वो जहन्नम के रास्ते पे क्यों इख्तियार करता है? जहन्नम पे क्यों चला जाता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फअबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। उसके माँ बाप का माहौल जैसा रहता है वो बाप ऐसे ही बन जाता है। बाप अगर हराम कमाता है तो बेटा का माहौल भी वही, बेटा भी हराम कमाता है। बाप का माहौल अगर गलत रहता है, धार्मिक रूप से उसका धर्म नहीं होता है, धार्मिक का काम नहीं करता है, तो धर्म से हट जाता है, वो गोया के जहन्नम के रास्ते पे चला जाता है। और फिर यही बात आती है कि फिर जब वो धर्म के रास्ते चला जाता है तो वो ताकत जो उसके दिल के अंदर उस रब ने पैदा किया था हिदायत की, वो उसकी पापों की वजह से कमजोर हो जाती है। फिर उसको हिदायत मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। हिदायत मिले तरफ से बड़ी मेहरबानी, रहमत, मोहब्बत है। हिदायत ना मिले तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तो कह दिया, मेरे बंदे, मैंने अलस्तु बिरब्बिकुम, मैंने तुझे आलम अरवाह में मैंने वादा ले लिया था। और मैंने ये भी वादा ले लिया कि जब मैंने माँ के पेट में तुझे पैदा किया था, जब मैं जिस्म और आंख और कान तब मुझे बना रहा था, तब मैंने फरिश्तों को कहा था, फरिश्ता देख इसको, कहीं दुनिया में जाकर के मुझे भूल ना जाए, इसका रब मैं हूँ। लेकिन ये बंदा अपने माहौल में आकर के भूल जाता है। और इसकी सबसे बड़ी दलील यही है कि बंदा दुनिया में आकर के भूलने की उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि उसके माँ बाप की वजह से उसका माहौल चेंज होता है, जिसकी वजह से वो रब से उसका ताल्लुक, कनेक्शन कमजोर हो जाता है, रब को भूल जाता है। रब को भूलने की वजह से उसको हिदायत नहीं मिलती है, सही रास्ता नहीं देखता है, और जिसकी वजह से जहन्नम में चला जाता है। लेकिन यह हिदायत उसके दिल के अंदर थोड़ी बहुत रहती है, चाहे वो दुनिया परस्त हो, कितना बड़ा पापी हो, कितना बड़ा कुछ भी हो, हल्की ने हल्की से उसकी हिदायत रहती है। उसके अंदर एक इंसान को थोड़ा सा इख्तियार दिया है। मिसाल के तौर पर इख्तियार को इस तरह समझिए, रब ने जो हम सबको पैदा किया, बनाया है, उसने मजबूर महज नहीं पैदा किया है। मजबूर महज का मतलब यह है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। सवाल हो चुका, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं उसी जवाब का सवाल नहीं है। मैंने ये कहा, ठीक है, आपकी मर्जी है, नहीं बुरा मानने की बात नहीं। आपने फितरत और हिदायत का समझा नहीं है। फिर ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा था कि आप बात हो जाएगी, सवाल नहीं करना। बुरा मानने की कोई बात नहीं, समझना ना समझना आपके ऊपर है। बस ये है कि मतलब इख्तियार अल्लाह ने दिया है, ऊपर वाले ने इख्तियार दिया है, तो उसके अंदर थोड़ा सा दखल होता है। मिसाल के तौर पर हम सब साधु संत, सबको साधु संत तो नहीं बना सकते, लेकिन सब बनना चाहे तो उसके इख्तियार में है कि बन सकते। तो ये इख्तियार उसके दिल में होता है, और उस इख्तियार की वजह से अगर आदमी इस्तेमाल करता है तो जन्नती बन जाता है, उस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर वो जहन्नमी बन जाता है। इस तरह वो बंदा जहन्नमी बन जाता है। इसी पर फिर अल्लाह ने कहा है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। किसी को कुछ सवाल? गौहर शाही मरवा। जी, साहबा इकराम ने रसूलुल्लाह से अर्ज किया कि रूह क्या है? आया कुरान में, रूह जो है जिस्म में डाली जाती है तो वो जिंदा हो जाता है, निकाल लिया जाता है तो मुर्दा हो जाता है। अब जो इंसान जो हुई तो वो किस बिना पर हरकत करता है, उसका बदन, उसका देखनापन, बोलनापन, सुननापन, या दिमाग में जो इरादा आता है वो। अल्लाह ताला ने इंसान को दो तरह की रूह से बनाया है। एक तो अर्जी अरवाह है और एक है समावी अरवाह। अर्जी अरवाह का मतलब है कि जमीन वाली रूह है, और समावी अरवाह वो होती है जो आसमानों से आती है। इंसान की जिंदगी का ताल्लुक रूह इंसानी से नहीं है, बल्कि ये अर्जी इनसे जिस्म की जिंदगी का ताल्लुक है।
जब माँ के पेट में नुत्फा पड़ता है तो उसको उसमें जमूद कायम करने के लिए अल्लाह ताला रूह जमादी उसमें दाखिल फरमाता है, जिससे वो जो नुत्फे का खून है जमूद की वजह से गोश्त का लूथड़ा बन जाता है। फिर उसके चंद हफ्तों बाद उसमें रूह नबाती दाखिल की जाती है, जिससे उसमें ग्रोथ होती है, और 6 महीने के बाद उसमें रूह हैवानी दाखिल की जाती है, जिससे उसकी शक्ल सूरत होती है। ठीक है। फिर वो बच्चा जब तैयार हो जाता है और माँ के पेट से बाहर आता है ना, बाहर आने के बाद फिर उसमें फरिश्ते ये समा दाखिल करते हैं। ठीक है ना। तो उसकी जिंदगी का ताल्लुक अगर समावी अरवा से होता तो वो तो माँ के पेट के बाहर डलती हैं, वो जिंदा कैसे रहा। ठीक है ना। तो जिंदगी का ताल्लुक समावी अरवा से नहीं है, अर्जी अरवा से है, जो हमारे जिस्म में रूह जमादी, रूह नबाती और रूह हैवानी की सूरत में मौजूद है। आपको समझ में आ गया? और कोई बात नहीं? शरअ सदर क्या है? शरअ सदर जो है, इसके बगैर इस्लाम नहीं है। बेशक। कुरान ने कहा है अफमन शरअल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम, इस्लाम पर अमल पैरा होना चाहते हो तो फिर शरअ सदर जो है वो करना होगा। शरअ का मतलब होता है खोलना, और सदर का मतलब है सीना। ये जो हमारा सीना है इसको अरबी जबान में सदर बोलते हैं। अब जाहिर है कि इसका जाहिर नहीं सकता। अगर हम इसका जाहिरी मतलब ले लेंगे तो फिर आप सीना खोल देंगे तो मर जाएंगे। तो इसका बातनी ही मतलब हो। इसका बातनी मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान के सीने में 5 किस्म की अरवाह को रखा है। एक तो तसव्वुर ये है कि यौम महशर में सवाल जवाब होंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, मुहासबा होगा। लेकिन कुरान ने एक तसव्वुर ये भी दिया है वहुस्सिला मा फी सुदूर, और जो तुम्हारे सीनों में पोशीदा है उसको हासिल करके अल्लाह चेक करेगा क्या किया है दुनिया में। माफी सुदूर, जो तेरे सीनों में है वो भी देखा जाएगा। 5 अरवा सीने में है, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा क़ल्ब, लतीफ़ा ख़फ़ी, सिरी, अख़फ़ा, ये 5 है। इनको बेदार करना अल्लाह के नूर से और इनको अल्लाह के जिक्र में लगाना, ये शरअ सदर। क्या बात। इसको शरअ इसलिए कहा गया है खोलना कि ये पांचों की पांचों जो रूहें हैं ये कल्ब के अंदर बंद है। पांचों की पांचों कल्ब के अंदर बंद है। जब कल्ब का दरवाजा खुलेगा, कल्ब में नूर दाखिल होगा, तो फिर बाकियों का रास्ता नहीं खुलेगा। तो दरअसल कल्ब की बेदारी वो शरअ सदर की इब्तिदा है। क्या बात। कल्ब की बेदारी। इस में फरमाया है वमन युमिन बिल्लाहि, जो कोई भी अल्लाह पर ईमान लाएगा, यहदी क़ल्बहु, तो अल्लाह उसके कल्ब को हिदायत देगा। ये तसव्वुर गलत है कि पहले से उसमें हिदायत का उन्सर मौजूद है। यहदी क़ल्बहु, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाएगा
यहदी कल्बहू, तो अल्लाह उसके कल्ब को हिदायत देगा। अब ये कल्ब है, इस कल्ब का मुनव्वर होना, हिदायत पा लेना, यही मुसलमान को मोमिन बनाता है। हर मुसलमान मोमिन नहीं है, क्योंकि मुसलमान एक दर्जा है, दर्जा इस्लाम है, उसके बाद दर्जा ईमान है, फिर उसके बाद दर्जा ईकान है, फिर उसके बाद दर्जा एहसान है। ज़बान पढ़ लेना ये आपको इस्लाम में दाखिल कर देगा, लेकिन इस्लाम की शर्त है इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। जो ज़बान से पढ़ा है उसका सिद्क कल्ब में भी करना चाहिए। कुछ अरबी लोग आए हुजूर के पास और कहने लगे कि हम मोमिन हैं। सूरह गुजरात में अल्लाह ने फरमाया क़ालतिल अराबु आमन्ना, कि ये आराबी कहते हैं कि हम मोमिन हैं। कुल लम तुअमिनु, इनको कह दो कि तुम मोमिन नहीं हो। कुल लम तुअमिनु, इनको कह दो तुम मोमिन नहीं हो। वलाकिन क़ूलू अस्लमना, बल्कि ये कहो ना कि मुसलमान हुए हो। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, क्या बात है, अभी तुम्हारे कुलूब में ईमान दाखिल कहाँ हुआ है जो तुम मोमिन कह रहे हो। वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी क़ुलूब, ये कल्ब में नूर का दाखिल होना ये इंसान को मोमिन बनाता है। उसके बाद दर्जा ईकान जो उस पर फायज हो जाता है वो मोमिन से बढ़कर बन जाता है। मौक़िन, ये कुरान की तालीम। साहिब ईकान, यकीन के 3 दर्जे हैं, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़ुल यकीन। इल्मुल यकीन क्या है कि हम और आप मौलाना साहब से दीन की बातें सुने और यकीन कर लें, ये इल्मुल यकीन है। फिर जो कुछ हमने सुना है, अगर उस रब का नाम, उस रसूल का नाम हमारे सीने की रूहों में गूंजने लगे, नूर हमारी रगों में दौड़ने लगे, उसकी याद हमें सताने लगे, ये ऐनुल यकीन कि कोई है जिसकी मोहब्बत में ये दिल मचल रहा है। और उसके बाद हक़ुल यकीन क्या है? हक़ुल यकीन के लिए दर्जाए एहसान पे जाना होगा कि जब तू रब की इबादत करे तो यूं कर कि तू उसको देखने भी लगे। रब की इबादत में तुझे रब का दीदार हो जाए, उसके हुस्न से आशना हो जाए। दर्जा एहसान निकला है रब के हुस्न से। जो उसके हुस्न को मुलाहिजा कर लेता है वो मोहसिन हो जाता है। और कुरान मजीद ने कहा इन्नल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह को ढूंढ रहे हो, वो मोहसिनीन के कुर्ब में बैठा है। इन्नल्लाह करीबुम मिनल मुहसिनीन, ये 3 दर्जे हैं। दर्जा इस्लाम, जब तक आप मोमिन नहीं बनेंगे तो आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आप क्या बनेंगे। मोमिन जो बन गया वो गारंटी है, और जो मोमिन नहीं बना वो वहाबी हो गया, सुन्नी हो गया, बरेलवी हो गया और शिया हो गया। और जो मोमिन बन गया
वो ना वहाबी होगा, ना सुन्नी होगा, ना शिया होगा, वो उम्मती है या रसूलुल्लाह। दिलों में उतारना ईमान है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा न कोई मुर्शिद है, ना मौला अली जैसा कोई मुरीद। ना तो मोहम्मद जैसा कोई मुर्शिद, ना अली जैसा कोई मुरीद। क्या बात। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या फरमाते? अपनी आंखें बंद कर, माफी क़ल्बिक ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे तेरे कल्ब से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज आएगी। क्या ये ईमान की दलील है। ये ईमान हुजूर ने मौला अली को सिखाया, मौला अली ने वलियों को सिखाया, वलियों ने हमको सिखाया। हमको भी अपने दिल में जब तक कलमे की आवाज नहीं आएगी ना, हम भी मोमिन नहीं बनेंगे। और जसबीर भाई, सरकार के अल्फाज वो बार बार कान में गूंजते। सरकार गौहरशाही की जो जबान है वो पंजाबी है। जो कोई भी बंदा आता है ना तो पूछते क्यों आए। लोग अगर कहते हैं रब वास्ते तो सरकार के अल्फाज ही, चलो अखा बंद करो, अखा बंद करो, पढ़ो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही अल्फाज हुजूर के हैं। क्या बात। मोहम्मद आईना का तेरा शाही हम हमारा हम खुद को किसी से अफजल नहीं समझते। पता नहीं अल्लाह किसको कितना चाहता होगा, अल्लाह किसको कितना चाहता है ये तो अल्लाह ही जानता है ना। वो तो मालिक है, उसकी मर्जी है कि किसी को इबादतों के बाद चाहे और किसी को बगैर इबादत के ही चाहे, उसकी मर्जी है ना। लेकिन ये जो तरीका हमको मिला है मोहम्मद रसूलुल्लाह से, मौला अली से, सरकार गौहरशाही से, और जितने भी औलिया इस धरती पे आए हैं, जितने भी औलिया, भले उनका सिलसिला कादरिया हो, चिश्तिया हो, नक्शबंदी, कोई भी हो, हमारी नजर में तो सब एक ही हैं। अल्लाह उनकी दुआओं से, उनकी बरकत से और ये सरकार गौहरशाही की इंतहाई दर्जे की करम नवाजी है कि उन्होंने हमें सही माना कुरान का समझा दिया। हमारे कुरान और गौहरशाही के कुरान में फर्क ये हुआ कि हमने कुरान मौलवियों से पढ़ा और गौहरशाही को कुरान हुजूर के सीने से मिला। तेरा शाही मेरा शाही, तेरा शाही मेरा शाही। फर्क क्यों हो गया उसमें कि हमारे पास जो आया उसको इंसानों ने लिख के छापा ना, और जो जिब्रील ने बसूरत वही नाजिल फरमाया कुरान तो हुजूर के में आया था। तो असल कुरान तो जिसको भी असल कुरान मिलेगा उसको हुजूर के सीने से मिलेगा। कोई जुटला दे, जिसको भी कुरान मिलेगा ना ये पढ़ने के लिए है, इसमें फैज नहीं है। जो फैज वाला कुरान है वो हुजूर के सीने में। जिस तरह एक बंदा है और एक फोटो है, तो फोटो देख के आप पहचान
पहचान लेंगे कि ये फला बंदा है, ठीक है ना? लेकिन जो उस बातचीत हो सकती है फोटो से तो नहीं हो सकती। तो ये जो कुरान हमारे है, ये कुरान नहीं है, कुरान का फोटो है। असल कुरान हुजूर के सीने में है। क्या बात, इसीलिए हुजूर ने फरमाया उलमा मिन सदरी, कि उलमा के दर्जे पर वो होंगे जिनको मेरे सीने से क्या बात, मेरे सीने से फैल होगा, वो उलमा होंगे। फिर मोमिनीन की एक शान ये भी बयान की कुरान में, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, कि मोमिन की जो पहचान है वो ये है कि उठते बैठते करोड़ों के बल भी वो जिक्र अल्लाह करते रहते हैं। क्या बात, उठते बैठते जिक्र अल्लाह करते रहते हैं। इसका माना मौलवियों ने ये निकाला कि खड़े हो तो ये आयत पढ़ लो, बैठ जाओ तो ये आयत पढ़ लो, सोने से पहले ये वाली आयत पढ़ लो। अब यहाँ पर ये गुमराही पैदा होगी। इस गुमराही को भी खत्म करने के लिए अल्लाह ने फिर मोमिनों की एक और भी शान बयान की। पहले तो कहा अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिहिम, कि उठते बैठते करोड़ों के बल भी जिक्र अल्लाह करते हैं। उसके बाद एक ऐसी भी चीज बता दी जो मौलवियों के पास उसका कोई तोड़ ही नहीं था। वो क्या थी? उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अपना नाम में लिख के स्टैम्प कराएगा। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, तहरीर कर देगा ईमान उनके दिलों पर। वो जो तहरीर करेगा दिल पे अपना नाम लिख देगा। क्या बात, दिलों के ऊपर इसमें ज़ात अल्लाह नक्श हो जाएगा। उसको अल्लाह ने कहा कि ये मोमिन, ये आला दर्जे का मोमिन। और ये जो ईमान की जो तशरीह मैंने आपके सामने बयान की है, ईमान के इस दर्जे को हासिल करने के लिए हमें रूहानियत इख्तियार करनी पड़ेगी। कोई भी सिलसिला हो, चिश्तिया खानदान हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदी हो, रिफाई हो, नौशाही, कोई भी, सब अल्लाह वाले हैं। किसी भी सिलसिले से हमें रूहानियत हासिल करनी पड़ेगी, तब हम मोमिन बनेंगे। अगर मोमिन नहीं बने तो फिर क्या फर्क है तू हिंदू है या मुसलमान है, सब एक ही जैसे हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा बिना इश्क दिलबर क्या कुफ्र क्या इस्लाम। क्या बात, अगर उसका इश्क ही तेरे अंदर दाखिल नहीं हुआ तो फिर इस्लाम और कुफ्र में क्या फर्क है? तू मुसलमान होकर काला, वो काफिर होकर काला, दोनों काले हो अंदर। और कोई सवाल? सही माना हुआ सवाल नहीं करने, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। हम स्कूल में जब पढ़े थे तो उस टाइम में पार्ट ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, तो 6 अंधा आदमी हाथी को देखने के लिए बहुत इरादा किया और किसी प्यार से वो हाथी को दिखा दिया। तो इन लोग क्या किया, वो किसी ने पूंछ पर छुआ, किसी ने पेट पर, किसी ने कान पर, किसी ने आकर के सब कोई अपने में तकरार में लगा हुआ। मैंने ये देखा ये पंखा का जैसा है, किसी ने बोला वो पेड़ के जैसा है, किसी ने बोला नहीं छात के जैसा है, किसी ने बोला नहीं ये जैसा कपड़ा को लिपटने से जैसा होता है जैसा है। लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला कि वो अपने आप छू करके वैसे ही देखा है। आखिर में हाथी देखना अंधा था, इसलिए ये अंधा था, इसीलिए इन लोगों को हाथी नहीं हुआ। और आज हम लोग बैठे हुए यहाँ, हम लोग भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो मिलने का जो रास्ता है वो दिखाने के लिए गौर सामने आया है। अपने आप से वो देख ले कि हाथी कैसे है। बहुत बड़े
बेटी है उसका मैं थोड़ा सम्मान करना चाहता हूँ। दीदी जो है ना आपके हाथों से यूके में भी आश्रम होता है, यूरोप में भी आश्रम इधर जो हमारे साथ प्रभु वो इधर प्रभु के ढेर लगा है, इधर सब प्रभु लोग देख रहा है, आपको देख रहा है, कोई सुन रहा है, सब प्रभु ही प्रभु है, सब अल्लाह ही अल्लाह है। यहाँ सबको मैं अल्लाह नजर देखता हूँ, भगवान को देखता हूँ। और ये बहुत प्रिय दोस्त लोग जो इस दुनिया को एक अच्छा दुनिया बनना चाहता है, शांति की दुनिया, प्रेम करुणा की दुनिया, जिसमें कोई लाभ झगड़ा ना हो, शांति शांति हो, प्रेमी प्रेम हो, ऐसा ही दुनिया चाहने वाला ऐसा महापुरुष लोग यहाँ बैठा हुआ है। मैं यहाँ आने में 2 घंटा से कोशिश किया, लेकिन 1.5 घंटा रास्ता निकाले, इधर बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ है। तो मैं थोड़ा डर था कि आप सबको मुलाकात दर्शन नहीं हो पाएगी। कृपा है कि मैं आपके साथ आ पाया, धन्यवाद। ये दुनिया में अशांति फैला रहा है, जितना मानव की आत्मा भीतर जो लोभ, लालच, क्रोध, अशांति फैला हुआ है, उस अशांति को मिटाने के लिए हम सब धर्मों का परम पूज्य जो धार्मिक नेतृत्व करने वाला जो महापुरुष लोग है, महात्मा लोग है, महागुरु लोग है, बंधु लोग है, हम सब इकट्ठा होकर के जब हम एक आत्मा दिल से दिल एक हो जाएगा तो इस दुनिया के सबसे कठिन ज्यादा कठिन हम मिट सकता है, मिटा सकता है और दुनिया में शांति ले सकता है। दुनिया को फिर ये सबके लिए स्वर्ग बना सकता है। इसलिए यही इच्छा से ये जो हमारा परम पूज्य स्वामी जी आनंद जी, विश्व आनंद जी ने जो यूनिटी, प्लेनेट यूनिटी को जो वहां ने जो नेतृत्व किया है, इस दुनिया मात्र नहीं है, पूरा प्लेनेट को बचाने के लिए, पूरा विश्व को बचाने के लिए सब
मानवीय बचाने के लिए, सब प्राणी लोग को बचाने के लिए जो वहाँ ने जो अभी तक जो तपस्या किया, जो हम सब के दिल जीता है, इसलिए मैं स्वामी जी विश्व आनंद जी स्वामी जी है, उनको मेरे दिल से, मेरे आत्मा से स्वागत करना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज वहाँ के कृपा से, वहाँ के प्रेम से हम सब मुलाकात हुआ है। इस मुलाकात में बहुत बड़ा शक्ति है। नेपाल ऐसा देश है, शांति प्रिय देश है। नेपाल का जितना लोग नेपाल में रहते हैं वो लोग शांति प्रिय देशवासी है। नेपाल के लिए कोई शत्रु नहीं है। नेपाल सबको मित्र मानता है, सब दानव को मानता है, सब मानव को मानता है, सब प्राणी लोगों की सेवा करना चाहता है। ऐसा एक पवित्र देश में हम सब इकट्ठा हुआ, इसमें खुद इस मुलाकात में बहुत बड़ा शक्ति बना है। इस मुलाकात जो आज जो मुलाकात हुआ है, जो मीटिंग चल रहा है, इसमें बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा शक्ति है। इस शक्ति के कारण से दुनिया में शांति लाएगा, दुनिया में खुशी लाएगा। ये दुनिया को आत्मा के भीतर, मानव का आत्मा में जितना पाप है वो मिटा जाएगा, सबका आत्मा पुण्य से भर जाएगा, शांति से भर जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद भी है, ये मेरा विश्वास भी है। आप सबको मुलाकात करके मैं बहुत खुशी से समझता हूँ। ज्यादा दिल है हिंदुस्तानी, दिल है नेपाली, दिल है पूरा दुनिया, दिल है अल्लाह, दिल है मुस्लिम, दिल है बुद्धा, दिल है ब्रह्मा विष्णु शिवा। तो जो दिल सबका दिल होता है वही सब सेवा कर सकता है, वही सबको प्रेम कर सकता है। मैं ऐसा एक बकता हूँ, लेकिन जो बकते में जो जैसे जब भगवान में शक्ति होता है, अल्लाह में शक्ति होता है, उस तरह भक्ति में भी शक्ति होता है। जो अल्लाह की भक्ति करता है, जो शांति और प्रेम को भक्ति होता है, जो भगवान को जो भक्ति होता है वही भगवान की शक्ति उसमें भी होता है। इसलिए हम सब का शक्ति, भगवान की शक्ति हमारा आत्मा में है, हमारा शरीर में है। ये आत्मा सब जोड़ करके, शरीर सब जोड़ करके दुनिया में शांति मिलेगा। दुनिया में जितना लड़ाई झगड़ा युद्ध होकर है वो सब मिट जाएगा, शांति दुनिया में आएगा। ये मेरा आशीर्वाद है, मेरा प्रार्थना है आप सबके। जय हो, जय हो, जय हो। आप हमको दो क्वेश्चन मांग सकता है, अगर आप इच्छा हो, आपको प्रभु की इच्छा है तो हमको दो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ भी। किसी को कोई सवाल करना है तो सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाल थोड़ा आर्टिफिशियल होता है। कोई सवाल नहीं करेगा, सवाल का मौका नहीं देगा तो उसी भगवान के विश्वास में आत्मा ठीक लाइन में लगेगा। अगर सवाल ज्यादा करेगा, प्रश्न ज्यादा आएगा, दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए दिमाग को सही जगह में लगाना है, प्रभु प्रति लगाना है, अल्लाह प्रति लगाना है, भगवान प्रति लगाना है, शांति की तरफ लगना है, दया करुणा प्रति लगना है, तब हम सब बच जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरा नाम गुरु कर्मा तनपाई आचार्य। गुरु कर्मा तनपाई जो कर्म करता है, जो सेवा करता है, जिसके दिल में दया है, करुणा है, जिसके दिल बहुत साफ है और सीधा है, उस तरह का बंधु हूं मैं। इसलिए मैं आप सबका चेला है, आप सबका बच्चा है। लेकिन इस बच्चा में भी जितना आप सबको शक्ति है, बच्चा में शक्ति है, इसलिए बच्चा यहाँ आया है। सब प्राणियों को, अमालों को, बहु लोग को सेवा करने के लिए, दुनिया में शांति लेने के लिए बच्चा आपके पास आया है। ये बच्चा में भी भगवान ने कुछ खुदा दे करके इस दुनिया में भेजा है शांति के लिए। धन्यवाद। अच्छा, तो आप आपके साथ मैं बैठ दिया ज्यादा हो जाएगी, तो आपको दूसरा उम्र में उसी में ज्यादा लेना नहीं चाहिए, नहीं तो उसमें चांस जाता है। उसमें ये कुर्सी नहीं है, सोफा है। सोफा है। कुर्सी होती तो मैं आपको बैठने लेकिन ये सोफा, क्योंकि आपकी दिल बड़ा है। गुरुजी की इजाजत से आज जो हमने यहाँ नजारा देखा, सब धर्म वालों का यहाँ मिलन देखा, उसमें 5 अपने भाइयों ने जो मेहनत की है, गुरुजी के हाथ से
वो दोनों गुरुजी के हाथ से उसका सम्मान करना चाहते हैं। जो मेहनत करते हैं उसको मेहनत का फल भी मिलना चाहिए। तो हमारे प्रेम भाई जो है, प्रेम भाई यहाँ आए और हम सबको ठिकाने पर रहना, सब कुछ करना, ये हमारे प्रेम भाई पहले आएंगे, वो गुरुजी के हाथ से सम्मान ले सकेंगे। गुरुजी अपने प्रेम भाई जी को यहाँ आप दोनों ये रहे। इसके बाद दिल्ली भाई तैयार हो जाओ। प्रेम भाई का है, प्रेम भाई रंग है, लाल है, जरा प्रेम करता है तो लाल रंग होता है। ये इस वक्त आप देख रहे हैं गौरशाही मरहबा यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर की जानिब से, अलरा टीवी की टीम की जानिब से, मसाया फाउंडेशन की टीम की जानिब से तमाम मज़ाहिब के लोगों को आज इतना खुशी का मौका दिया गया है, उनको नवाजा जा रहा है। यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर की जानिब से है और इसमें मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद, तमाम धर्म के जितने भी मेहमान यहाँ पर आज आए हैं तमाम को यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर की जानिब से, सैयद यूनुस अल-गौहर के प्लेटफॉर्म की जानिब से, मसाया फाउंडेशन इंटरनेशनल, अलरा टीवी की जानिब से खुशी मुबारकबाद तकसीम की जा रही है। स्कूटर पे लेके ये हमारे भाई है मोहम्मद अख्तर भाई जी, ठंडी में सब जगह पे स्कूटर लेके मेरे को लेके गए, सब मंदिरों में मस्जिदों में गए। ये हमारे अख्तर भाई सबको मोहब्बत करता है और सबको सेवा करता है, ये बहुत महान महापुरुष है। यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर की जानिब से ये तमाम एहतमाम किया जा रहा है, अलरा टीवी टीम की जानिब से, और जितने लोगों का तारुफ किया जा रहा है आपके सामने, सब जगह पे पूरे ये हमारे प्यारे प्यारे स्वामी जी, प्यारे प्यारे मीठे मीठे मदर विश्व आनंद स्वामी जी की तमाम इन्होंने प्रदीप खन्ना जो है, दिलीप भाई जो है, दिलीप डोंगर जो है, प्रदीप जी, ये हमारे नेपाल का बहुत बड़ा प्रिय पहुंचा हुआ एक जनरल, श्रीलंका के फर्स्ट ऑफिसर है जो वीजा देता है सबको। और ये 5 साल से मेरा चेला हूँ, बहुत प्रिय चेला हूँ, इनको बहुत स्वागत करता हूँ। इनके कारण से गुरु जी से मुलाकात हुआ, इतना बड़ा लोग, इतना प्रभु लोग से मुलाकात हुआ, आप सबके साथ इसका सेवा बहुत बड़ा है। साहबुद्दीन भाई रात दिन मेहनत करते हैं, साहबुद्दीन भाई। और एक आखिर में प्रदीप खन्ना किधर है? प्रदीप जी, प्रदीप खन्ना भी आ जाए, प्रदीप जल्दी आ जाए, टाइम जाया ना करें, जल्दी से आ जाए। ये साहबुद्दीन भाई ने गुरु जी सबको जहाँ फेरना था ये सब प्रबंध किया है, रात दिन मेहनत किया है। प्रदीप जी जल्दी आ जाइए, खत्म हो गया। स्वामी जी से आपको कोई बात नहीं, गुरु जी पेश कर देंगे ना। वो आ गया नहीं, ये क्या आपसे नहीं, ठीक है, ये आपका दिल का आयु, आपका लोग लाइफ है, इसका आपके साथ भी है, यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर की जानिब से ये तमाम तकरीब जो आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं, पूरी दुनिया के तमाम लोग देख रहे होंगे कि यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर की जानिब से आज तमाम लोगों को जो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और अपनी खुशनसीबी का इजहार कर रहे हैं, सैयद यूनुस अलगौहर की सोहबत से फ़ायदा उठा रहे हैं और रूहानी तौर पर भी और नूरानी तौर पर भी, ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर भी सैयदियों को नेमतें अता फरमा रहे हैं। तो आज की महफिल की खुसूसियत ये थी कि विश्व आनंद स्वामी जी ने इतनी मेहनत से तमाम मज़ाहिब के जितने भी मेहमानों को यहाँ पर मदऊ किया, यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। तालियां विश्व आनंद स्वामी जी की। विश्व आनंद स्वामी जी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। ये तमाम कोशिशें, ये काविशें हैं यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर की जानिब से, MFI मसाया फाउंडेशन इंटरनेशनल की जानिब से, सैयद यूनुस अलगौहर की अलरा टीवी टीम की जानिब से,
मैं तमाम दोस्तों को जो इस वक्त देख रहे हैं, मुलाजा फरमा रहे हैं पूरी दुनिया से, उनको गुजारिश करूंगा कि वो इस महफिल को जब शेयर करें तो याद रखें कि ये प्रोग्राम, इतना खूबसूरत प्रोग्राम जो कि यूनिवर्सल सूफी ऑर्डर ने एहतमाम किया है, ये तमाम मुबारकबादें जाती हैं अलरा टीवी टीम को, यूनुस अलगौहर की टीम को। हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं सब लोगों को और सैयदी की बारगाह में शुक्राना पेश करते हैं। गौहर शाही, गौहर शाही, तेरा शाही मेरा शाही, तेरा शाही मेरा शाही, तीनों दुनिया की भलाई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बधाई, बहुत बधाई। आखिर में गुरु जी कुछ कहेंगे, आप कुछ कहें। आप क्या कहेंगे? इन लोगों का जय जय सब कुछ बोल दिया है। अच्छा, अब समय को बचाइए। हमें बहुत खुशी हुई आप हम रोज बोलते हैं, आज आप देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो सब बंधु सब लोग जानते हैं उसको कहिए। हम अब सब किसी को जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो कभी कभी हम भूल जाता है। इसलिए अभी ये जो दुनिया के हम जब पैदा होकर के अभी एक दिन जब तक हम नहीं मरेगा तब तक ये जिंदगी जो हम जी रहे हैं ना, एक सपना की जिंदगी है। ये 2 दिन की जिंदगी है, इसको सपना की तरह है। इसमें ज्यादा आप विश्वास मत कीजिए, इसको मत विश्वास करिए, क्योंकि ये 2-4 महीना 2-4 साल भगवान खुदा हम सबको रक्षा करेंगे। हम और 100 साल जिए, लेकिन हम मरने वाला जरूर है। इसलिए आप महाराज को याद कीजिए तो ये दुनिया की चिंता सब भूल जाएगा। आपको भगवान के साथ, अल्लाह के साथ आत्मा मिल जाएगा। जब आप महाराज को याद करेंगे, भगवान आपके आत्मा भीतर पास जाएगा। जब आप इस दुनिया को, ये माया के जाल वाला जो दुनिया को याद करेंगे तो आपको दिल भटक जाएगा, आत्मा भटक जाएगा, हम पापी बन जाएगा। इसलिए हम सबको महाराज को याद करना है। महाराज को याद करके हम पाप से बचाना है, धर्म करना है, पुण्य करना है, तपस्या करना है। आत्मा भीतर जो अल्लाह है, भगवान है, जो भगवान बुद्धा का स्वरूप जो आत्मा है, सुंदर आत्मा जो है, उस आत्मा को प्राप्त करके हम मोक्ष प्राप्त करना होगा। कि फिर हम ये दुनिया, ये जिसमें जितना दुख और चिंता की बड़ा हुआ दुनिया में फिर ना आ सके, हम स्वर्ग में हम एक भगवान बन करके, हम खुदा से आत्मा मिल करके, भगवान हो करके, मोक्ष प्राप्त करके हो जाए। इसलिए इस दुनिया की जो माया की जाल है उसमें आप जितना तक ना फंसाएं, अपना आपको बचाए। तो महाराज याद कीजिए, धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, तो अल्लाह और भगवान के आत्मा को, परमात्मा को विश्वास करके आप पुण्य मंत्र कीजिए, तो हम सब भगवान का आत्मा होकर के, परमात्मा होकर के भगवान के साथ जोड़ जाएगा, हम मुक्ति मिलेगा। इसीलिए इस दुनिया का हम क्यों जन्मा है, इस दुनिया में मानव होकर के खाली मोक्ष के लिए, भगवान प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जन्मा है। यहाँ हमें हैंकी पैंकी करने के लिए नहीं जन्मा है। तो इसलिए अगर ये जीवन का जो हम भगवान ने जो मौका दिया है, अगर इस मौका को हम घुमाएगा तो दूसरे जीवन में मौका कभी नहीं मिलेगा। ऐसा भगवान ने हमको एक दिल दिया है, उस दिल को खुद भगवान को देना है, धर्म को देना है, सत्य को लगना है। हमारा एक जीवन है, वो जीवन भी भगवान के लिए देना है, जीवन देना है, पुण्य करने के लिए जीवन देना है, दूसरों की सेवा करने के लिए जीवन देना है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन देना है। उस करने से हम सब पवित्र आत्मा है, हम सब पवित्र आत्मा होकर के दुनिया में शांति से जिएगा, शांति से मरेगा। मरने के बाद हम खुदा के साथ जोड़ जाएगा, भगवान के साथ जोड़ जाएगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसे यही हमको प्रार्थना करना है। आप महाराज को याद कीजिए, ये दुनिया को जो जीवन जो 2 दिन की जिंदगी है उसमें आपको ज्यादा ध्यान मत दीजिए, उसमें जितना ध्यान देगा खुदा भटक जाएगा। इसलिए महाराज को याद कीजिए, धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, दया कीजिए, करुणा कीजिए। अपने भीतर जो अहम है, क्रोध है, जो अज्ञानता है, उसको मिटा करके आप भगवान को ज्ञान प्राप्त कीजिए, शांति प्राप्त कीजिए, तपस्या कीजिए। तो ऐसा करने से हमारा जीवन बहुत पवित्र जीवन बन जाएगा, हमारा मरण भी बहुत पवित्र मरण बन जाएगा। उसके बाद हम जब दुनिया में आएगा, भगवान होकर फिर आकर के हम दुनिया को सेवा कर सकते हैं, सभी प्राणी को सेवा कर सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं। ये सब मेरा आशीर्वाद है, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको
याद दिलाना यही है, बस और कुछ नहीं बोलना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे MFI साउथ कोरिया की एक सरकार गौशाही की मानने वाली योन चाय, वो कुछ गाना चाहते हैं सरकार के। मारवाड़ी जो है सबसे बड़ा लोग है। ये तो पेट्रोल है, पेट्रोल टैंकर ये गाड़ी नहीं चलता है ना। मारवाड़ी टैंकर दुनिया को बिजनेस से नहीं चलता है, दुनिया को कोई उपलब्धि नहीं होता है। मारवाड़ी लोग है वही सब बाहुबली है, उनके कारण से वो जहाँ जहाँ है वहाँ इकोनॉमिक अच्छा होता है, बाकी होता है। मारवाड़ी की संग जाए हो।
बस आज यहाँ खत्म कर देते हैं। बहुत बहुत नवाजिश। चल भी मुलाकात